us once thank Yamaha, Popular Group, and TCS for sponsoring ZAB Media Festival 2024. We are happy to announce J-Dot as our proud partner. TapMat, Tibet, DKT, and Himani have also been keen supporters of the event. Let's also mention Nishman, Hope by Popular, FM 91, and Kasra Shireen for being our styling, hydration, radio, and refreshment partners, respectively. And how can we forget our giveaway partners, Crispo, Shangri-La, Body Bar, Jade, Vouch 365, and Nikita. The art of cinematography is the soul of filmmaking. It is the art of capturing images that not only serve as eye candy, but also convey the essence of the story being told. Bring you all into the world of cinematography, we have an alumni of Zabis Media Science Master's Program who has built an illustrious career as a cinematographer, Salar Yousafzai. Alongside, we have our very own professor who has been a guiding hand for production majors at Zabist and whose knowledge is second to none. Having worked on a number of short films and commercials, he also shot a Pakistani feature-length film named Lamha, which earned awards at New York International Film Festival and various other film festivals. Sir Faraz Iqbal. Now we would like to pass on the mic to Sir Faraz. Please take it away, sir. Thank you, Ali Taimur. Thank you guys for being here. Welcome to the cinematography workshop. Just want to tell you guys that a lot of effort, hard work, planning, and favors have went into making this event possible. मेरा आइडिया ये नहीं था कि सिनेमेटोग्राफी वर्कशॉप में कोई भी आए, कोई भी सिनेमेटोग्राफर आए और सिर्फ बातें करे और चला जाए. I wanted कि रियल लाइफ कुछ एक्सपीरियंस हो, तो एक लेक्चर भी है. I'm sure जितने लोगों ने रजिस्टर किया था इधर दे गॉट एन ईमेल, उसमें सब एक्सप्लेन हुआ था कि इसमें होने क्या वाला है और ये 6 घंटे की या 6.5 घंटे का क्यों है ये. तो पहले एक लेक्चर है बाय सलार, उसके बाद फिर जो है हम एक कैमरा सेमिनार करेंगे छोटा सा. उसके बाद यू कैन सी द सेट, एक बहुत ही हाफ कुक्ड सेट है हमारा पीछे. तो फिर हम सेट पे हम लाइट भी करेंगे जो कि सलार अपनी चॉइसेस से लाइट करके दिखाएगा. सो यू हैव एन इंडस्ट्री प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर, proper cinema line, ARRI, Alexa mini camera, and you have proper lights. So yeah, so we also have Pakistan का one of the best gaffers here, Bilal Shahji, ये वो भी है हमारे साथ. We'll also hopefully have Adnan Rafiq, who's also one of the best focus pullers. So I'm sure जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, and I'm sure, pretty sure more will join later. Whatever questions you have, guys, whatever questions you have, please don't hesitate. Salar से पूछें, बिलाल भाई से पूछें, अदनान से पूछें. So we are here to facilitate you. सिर्फ ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे वर्कशॉप बढ़ेगा और लोग आ जाते हैं अगर, तो फिर थोड़ा सा रश थोड़ा बढ़ेगा. So we'll have to manage in this studio. Yeah, that's about it. About the Salar, I have been, lucky enough to know him for more than 10 years now, and I've seen his journey myself. जब ये पढ़ा करते थे और जो है वो he started his journey as an assistant art director. खुद सेट पे कीले विले ठोकते थे, फिर उसके बाद ये आर्ट डायरेक्टर बने, फिर ये AD बने. And now माशाल्लाह at such a young age इसमें सलार ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, and he is among top cinematographers in Pakistan today. And he's a very resourceful guy, very approachable guy. बाकी मैंने भी बहुत लोगों के साथ काम किया हुआ है, लेकिन कुछ होते हैं जो कि बस इतना मिंगल नहीं करते, इतना हेल्प आउट नहीं करते हैं. मैं कभी फंसता हूँ, कभी भी कहीं भी किसी भी शूट पे फंसता हूँ. आई नो माई गो टू गाइज सलार. मैं पाकिस्तान में कहीं भी शूट कर रहा हूँ, ही इज अ गाय. मैं कहीं किसी भी चीज़ में फंस रहा हूँ, प्रोडक्शन में, आर्ट में, शूट पे, कैमरा लेंसेज, व्हाटएवर, सलार को सिर्फ एक कॉल करनी है, एंड ही इज ऑलवेज देयर. सो विदाउट फर्दर अडू, माय ब्रदर, वेरी डियर फ्रेंड सलार यूसुफज़ई. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज सलार यूसुफज़ई. इन्होंने ज़्यादा बोल दिया मेरे बारे में, इतना कुछ है नहीं. And whatever I am today is because of Sir Faraz Iqbal. He is my teacher of cinematography and everything. He taught me the camera, how to handle, how to do everything. So I have made a small presentation for you guys. जिसमें मुझे लगता है कि वो lights भी हैं, उसमें camera भी है, बहुत सारी techniques हैं. We also have some rigging techniques. मेरे अपने कुछ frames से example भी है, light की भी, framing की भी.
So let's start the workshop with the presentation. Okay. So I have made this presentation. वो basic भी हैं उसमें चीज़ें and gradually फिर वो आगे जाके advance होती रहती है. It's a small presentation of 60 slides only. तो वो हम करते हैं और मुझे लगता है इसके बाद थोड़ा बिगनर लेवल चीज़ें भी हैं. आई नो कि कुछ लोगों को वो सारी चीज़ें पता होंगी पर वी हैव लाइक अ मिक्स ग्रुप ऑफ पीपल, तो हमें इसलिए दोनों चीज़ें करनी होंगी. सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशॉप. सेकंड स्लाइड प्लीज. सेकंड. Okay, so let's start with the composition and the rules of framing. Being a cinematographer, I always knew कि cinematography में जो framing है वो सबसे important part play करता है. Light does also play a part, but light कभी कभार आपको natural मिल जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, आपकी favors में चली जाती हैं. But the framing is the essence of cinematography. कि अगर आप कोई भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आपकी फ्रेमिंग है वो क्या होगी, अगर आपके जो रूल्स हैं अगर आप वो अप्लाई करते हैं. हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई फ़ोटोज़ देखते हैं या कोई वीडियोस देखते हैं, वी आर लाइक यार ये बहुत अपीलिंग लग रही है, बहुत आई कैचिंग होती है, तो वो कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन रूल्स की वजह से हमें वो अट्रैक्ट कर रही होती है. ये रूल्स होते हैं, ये साइकोलॉजिकल बने हुए होते हैं. हमारी आई जिस तरह रीड करती है, हमारा माइंड जिस तरह वर्क करता है, उनको इनकॉर्पोरेट करके ये रूल्स बने हुए होते हैं. So the first one is rule of third. I hope you guys have watched this movie of the Joker. So the rule of third is whenever this is your frame, तो उसमें हमेशा एक ग्रिड होती है. ग्रिड में दो लाइंस इस तरफ वर्टिकल होती हैं एंड दो लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं. तो whenever you will place a character over the rule of third on the third side of the frame, तो वो आपके लिए एक एम्फेसिस एरिया बन जाता है, क्योंकि आपकी आई जिस तरह रीड करती है वो जी में करती है, तो वो आपको हमेशा आपका एम्फेसिस यहाँ जाता है और आपको वो शॉट अपीलिंग लगता है. तो whenever you are trying to do a photography या अगर आप कोई शॉट ले रहे हैं या वीडियो कर रहे हैं, तो आप ये रूल हमेशा अप्लाई कर सकते हैं. और ये रूल मतलब आपकी एक नॉर्मल इमेज भी आपकी कंपोजिशन सेट कर सकती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो दिस इज़ माई फ्रेम, दिस इज़ माई वर्क फॉर द बैंक अल्फला. तो ये भी मैंने इसलिए लगा दिया था कि मुझे लगता था कि सिर्फ अगर एक रैंडम हॉलीवुड फिल्म से एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आप लोग बोलेंगे खुद तो करता नहीं है, सिर्फ दिखा रहा है. तो दिस इज माय फ्रेम. आई हैव अप्लाइड दिस ऑन द रूल ऑफ थर्ड. द गाय स्टैंडिंग ऑन द रूल ऑफ थर्ड. सो आई लुक दिस इज अपीलिंग एंड करेक्टर ब्लॉकिंग मुझे लगता है कि यहाँ बेहतर है. अगर मैं इसी को यहाँ प्लेस करता तो शायद आपका एम्फेसिस उस पर नहीं जा रहा होता, क्योंकि वो बहुत कॉर्नर हो जाता. तो मुझे लगता है कि रूल ऑफ थर्ड इज़ द बेस्ट वे टू कंपोज योर फ्रेम्स, इवन इट्स द वाइड फ्रेम और इट्स अ क्लोज अप, नो मैटर व्हाट, बट रूल ऑफ थर्ड इज़ अ गुड फ्रेम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, सो दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम द वेस्ट इंडीजन फिल्म ग्रैंड बुडापेस्ट होटल. इट्स अ ग्रेट फिल्म, यू गाइस शुड वॉच इट. इट्स अ ग्रेट प्रोडक्शन डिजाइन ऑल्सो. सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड फ्रेम विद इन अ फ्रेम. जब भी आपको शूट कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट यू हैव अ फ्रेम, उसके अंदर भी एक और फ्रेम हो सकता है और उस फ्रेम के थ्रू आप शूट कर सकते हैं. इससे बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेम जिसको हम कहते हैं वो स्क्वायरिश हो. इट कैन बी रेक्टेंगुलर, इट कैन बी ओवल, इट कैन बी एनीथिंग जो कि आपकी स्क्रीन ब्लॉक कर रही हो. इट क्रिएट्स मोर एम्फेसिस. मतलब अभी इस शॉट में आपका जो भी अटेंशन है वो सारा इन कैरेक्टर्स के ऊपर जा रहा होगा, वो वुडन फ्रेम्स या साइड्स पे नहीं जा रहा होगा. एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे माइक की आदत नहीं है तो कहीं आवाज़ इधर उधर होती है. हेलो जी. सो ये जो प्रॉप हाउस से प्रॉप्स आए हैं सारे. थर्ड, आई वुड लाइक टू थैंक माय प्रोडक्शन टीम. ये जो जितने आप पीछे वॉल्स देख रहे हैं, ब्लू वॉल्स, ये हमने पेंट किए हैं, तो ये पूरा पेंट हुआ है. उसके बाद रहमा, शहीर, शयान, अली मोहम्मद एंड एवरीवन, अलिशबा, थैंक यू गाइज फॉर मेकिंग दिस हैपन. और चौथा, आई वुड रियली लाइक टू थैंक मिस विशा. इधर है नहीं, बट बहुत लोगों को मैंने बहुत तंग किया है कि आई हैव टू डू दिस और ये करना है. सो ये हो रहा है. सो या, आई नीड टू थैंक अ फ्यू पीपल. ओके, सो दिस इज़ गुड. हाँ, हम कहाँ पे थे? फ्रेम विद इन अ फ्रेम. तो बेसिकली होता क्या है कि आप जब फ्रेम विद इन अ फ्रेम कंपोज करते हैं तो वो एक एम्फेसिस एरिया बन जाता है आपका, कि जो भी उस फ्रेम के अंदर है आपका सारा एम्फेसिस, आपकी सारी अटेंशन उस चीज़ पे जा रही होती है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को जब भी शूट करें तो वो रेक्टेंगल उसमें, उसकी एक और एग्जाम्पल है. कैन यू चेंज द स्लाइड प्लीज. ओके, सो दिस, अब ये एक कोई प्रॉपर स्क्वायर फ्रेम के अंदर से फ्रेम नहीं है, बट स्टिल you see you can have some foregrounds and a top
तो ये एक ट्रंक के अंदर शॉट है बेसिकली. सो दिस इज आई शॉट फॉर द नेक्स्ट फ्रूटा वाइटल्स. तो वो आपका एम्फेसिस उस कैरेक्टर पे चला जाता है. अगर मैं यही शॉट इस फ्रेम विद इन फ्रेम के बगैर लेता इस बीच पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका एम्फेसिस बहुत जगह जाता है, क्योंकि एक आपका जो भी फ्रेम है वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे खुल जाता, वाइड हो जाता. तो आपके राइट पे क्या हो रहा है, लेफ्ट पे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आपको वो सब पे अटेंशन जा रही होती है, चीज़ें जा रही होती हैं. बट मी बीइंग अ सिनेमेटोग्राफर, द रीजन ऑफ दिस शूट विद दिस शॉट वाज टू शो द प्रोडक्ट बेसिकली. तो मुझे सारा एम्फेसिस लोगों का उस प्रोडक्ट पे करना था. दैट्स व्हाई आई चोज फॉर दिस फ्रेम विद इन अ फ्रेम टेक्निक फॉर दिस वन. If you guys have any questions or anything, you can feel free to ask. You can interrupt me anytime. Okay, so this is a balance image, or you can say the technique of shooting in the balance proportions. Balance से जब हम सोचते हैं हमें लगता है कि वो symmetry और balance is the same thing, but it's not. Symmetry जो होती है वो हमेशा ये होती है कि right left बिल्कुल same चीज़ें हों. For example, if I am standing in the front of this SMD in the center, तो मेरा right और left बिल्कुल exact same चीज़ें हों, वो symmetry होती है. Balance जो होता है वो balance होता है कि your character weightage is in the center. जो भी आपका पूरी frame में weightage है वो center में हो. You do this whenever you want to show in movies, whenever you want to show the stability of a character, or you want to show कि उसका POV, for example, if a person is watching someone, तो वो center frame पे होता है, वो balance image पे होता है. उसका background ज़रूरी नहीं आप balance करें, character का centralize होना ज़रूरी होता है उसमें. और ये majorly आपको किसी भी character की stability दिखाने के लिए important होता है. If someone is stable, you are showing a stable character or something, तो वो ज़रूरी होता है. Next slide please. This is my another shot for the I guess Bank Khalfala. I shot this in Turkey. It's a mosque, a beautiful mosque. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बैलेंस फ्रेमिंग लगती है. अगर मैं चाहता तो मैं इसको लेफ्ट से या राइट से भी शूट कर सकता था, पर द कंपोनेंट्स इन द फ्रेम, द एलिमेंट्स इन द फ्रेम आर सो बैलेंस्ड, तो इसलिए मुझे वो लगता है कि बैलेंस्ड फ्रेम आई चोज हियर. सो ओके, दिस इज अगेन अ जोक शॉट फ्रॉम अ जोकर. द लीडिंग लाइंस. द लीडिंग लाइंस इज अ मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर गेटिंग एन एम्फेसिस ऑन अ करेक्टर. लीडिंग लाइंस होती किस तरह से हैं कि जिस तरह से आप अगर फ्रेम देखते हैं तो एवरीथिंग लीड्स यू टू द करेक्टर, कि वो यहाँ से भी सारी चीज़ें लीड कर रही है करेक्टर की तरफ, वहाँ से भी लीड कर रही है करेक्टर की तरफ. इवन इफ दिस इज इन द बिल्डिंग्स, आप वो गाड़ियों के बीच में से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं और सेंटर में करेक्टर है, तो इट्स ऑल्सो अ लीडिंग लाइन. अगर एक पार्क है और यू हैव अ ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक ऑन दैट पार्क, जॉगिंग ट्रैक, तो उस पर अगर करेक्टर है तो वो भी लीडिंग लाइन हो सकता है. लीडिंग लाइंस आपकी आई को ट्रैवल करवा के खुद से सारी लाइंस से एक पॉइंट पे ले जाता है, एंड दैट पॉइंट इज योर करेक्टर. सो यू हैव टू ब्लॉक योर करेक्टर ऑन दैट पॉइंट. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो this is a frame where you can see, okay, so now this frame is not a beginner level frame, this is a little advanced thing. In a frame we have three grounds, foreground, middle ground and the background. For you the foreground is the person sitting next to you, the middle ground is me, and the background is SMD. So this is the foreground, middle ground and the background. Whenever we shoot, we try to incorporate all the grounds in one frame. हम जितनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी शॉट बना रहे हैं, तो वो हम सारे लोग एक ही फोरग्राउंड में या मिडिल ग्राउंड में साथ खड़े हुए हों. इट डिपेंड्स कि हम इन्फॉर्मेशन कितनी देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं. सो here you see this woman and this man is in the foreground. The second person standing at the back is in the middle ground. And you see a kid outside a window. It's a rear background. अगर मैं इसमें कहूँ कि सब लोग एक साथ आगे होते तो इस शॉट का मीनिंग चेंज हो जाता. अभी ये शॉट को आपको देख के लगता है कि वो जो बच्चा है, he doesn't know what is happening inside. उस तरह का आपको एक फील आता है शॉट को देख के. So this is the basically इसका जो सीन है, I don't remember actually, ऐसी कोई सीन है कि they were about to adopt him or give him in the boarding school, something like this. तो वो बच्चे को उन्होंने बैकग्राउंड रखा, दे यूज देमसेल्फ इन द फोरग्राउंड एंड द मिडिल ग्राउंड. तो वो आप एक बैलेंस, सर आप एक बैलेंस बनाते हैं अपनी पूरी फ्रेम का. अगर सब आगे भी खड़े होते एक साथ तो
ये फ्रेम इतना वाइड नहीं होता, अगर वो सब आगे खड़े होता तो पूरा फ्रेम ब्लॉक भी हो जाता, और वो फिर आपको कंपोजिशन अपीलिंग नहीं लग रही होती, क्योंकि आपकी जो आई होती है वो फिर सब पे जा रही होती है एक साथ, क्योंकि वो सब लोग एक साथ लाइन में होते हैं। आप बोलते हैं इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है। सो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग थे वो फोरग्राउंड में आ गए, जो उससे कम इंपॉर्टेंट था वो मिडिल ग्राउंड में आ गया, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट था वो बैकग्राउंड में चला गया। उसकी सिर्फ हिंट देनी थी क्योंकि इनको कि द किड इज समवेयर इन द फ्रेम। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so these were some tips on cinematography, on framing, the techniques of framing. So let's move to type of lenses. Hope you all guys know lenses and cinematography and photography. Lenses का तो सबको ही पता होता है आज. There are 3 type of lenses. I'm not talking about the kind of lenses, the type of lenses. हम जिस तरह से जब भी लेंस देखते हैं तो हम अगर वाइड लेंस देखते हैं या हम नॉर्मल लेंस देखते हैं जो हमारी आई पर्सपेक्टिव पे होती हैं, या हम कुछ चीज़ें देखते हैं टेलीफोटो लेंसेज पे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेंसेज। द नॉर्मल लेंसेज जिसकी फोकल लेंथ हमेशा वो होती है जो यूजुअली आप अपनी आँख से देख रहे होते हैं, विच इज़ 35 mm और 50 mm और मे बी 24 mm एट टाइम्स। तो वो हमारा वो पर्सपेक्टिव दिखा रहा होता है जो हमें नॉर्मली दिख रहा होता है, विच इज़ अंडर द 180। When you go for the telephoto lenses are those shots जो कि बहुत zoomed in shot होते हैं, जिसको हम zoom lens भी कहते हैं। Telephoto lenses वो होते हैं which starts from 50 mm से ऊपर जितने भी lenses हैं, those are telephoto lenses। वो basically करते क्या है कि आपका जितना भी foreground, background, middle ground है वो सब कुछ आपका blur हो जाता है, और जिस भी character पे आप दिखाना चाह रहे हैं उस पर हम focus हो जाते हैं। यूजुअली जैसे आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी देखी होगी किसी इंसान की या किसी भी चीज़ की, तो वो टेलीफोटो लेंसेज यूज़ करते हैं ताकि उनका जो भी कैरेक्टर है वो हमेशा शार्प फोकस रहे और बाकी चीज़ें ब्लर हो सकती हैं या डिफोकस हो सकती हैं। वाइड एंगल लेंसेज वो होते हैं जब आप एक ब्रॉडर एस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, और वो लेंसेज जो 24 mm से नीचे होते हैं, विच इज़ 21, 18, 16, 12, फिश आई विच इज़ 8 mm एंड एवरीथिंग, वो आपका यूजुअल से ज़्यादा वाइड दिखा रहे होते हैं। जितनी आपकी आंख नहीं देख रही होती उससे ज़्यादा वाइड शॉट वो दिखा रहे होते हैं आपको। वो आपके मेजरली वाइड लेंसेज वाइड शॉट्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, पर टुडे इन द मॉडर्न डे सिनेमेटोग्राफी ये टेक्निक थोड़ी पुरानी है। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको वाइड शॉट दिखाना है फिल्म में तो वो वाइड लेंस पे होगा, आपको मिड शॉट दिखाना है तो वो नॉर्मल लेंस पे होगा, आपको क्लोजअप दिखाना है तो वो टेलीफोटो पे होगा। सिनेमेटोग्राफी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, बट टुडे इन द मॉडर्न डे सिनेमेटोग्राफी मे बी यू गाइस हैव सीन रेवेनेंट, तो उसमें भी देखोगे तो अब ये ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि इट्स अप टू द स्टोरी, इट्स अप टू द स्टोरी टेलिंग, कि शायद आपका एक वाइड शॉट है लेकिन वो टेलीफोटो लेंस पे है, क्योंकि आपका जो पूरा एम्फेसिस था वो आपको सिंगल कैरेक्टर पे रखना था, आपको पूरी ज्योग्राफी इस्टेब्लिश करने पे नहीं रखनी थी। वरना वाइड लेंस आप जब भी लगाते हैं तो यू गेट टू नो कि ओके दिस इज द एरिया, दिस इज देयर इज अ शॉप, देयर इज अ स्काई, देयर इज अ बिल्डिंग, तो आपको पूरी ज्योग्राफी समझ आती है। बट टुडे हम चीज़ों सारे लेंस शफल कर लेते हैं। बहुत बार हम वाइड लेंसेज पे क्लोजअप्स भी करते हैं। उस क्लोजअप करने की वजह ये होती है कि इफ़ यू रियली वांट टू गो डीप डाउन इन द कैरेक्टर तो आप वो वाइड लेंस लगा के उसके करीब चले जाते हैं, इट्स गिव्स अ लिटिल डिस्ट्रॉशन। तो वो डिस्ट्रॉशन आपको बहुत रियल फील करवा रही होती है और बहुत क्लोज फील करवा रही है उस कैरेक्टर से। जब भी कोई आप फिल्म देखेंगे जिस तरह जिसमें कोई कैरेक्टर सर्वाइवल पे हो या स्ट्रगलिंग पे हो, इस तरह हो सॉरी, तो वो वाइड लेंसेज पे करीब जा रहे होते हैं कैरेक्टर के, क्लोजअप ले रहे होते हैं वाइड लेंसेज पे। उसकी बेसिक वजह यही होती है कि वो लोग सिनेमेटोग्राफर चाहता है कि आप उस कैरेक्टर को बहुत करीब से एनालाइज करें, और जिस तरह से आपकी आंख देखती है उस तरह से आपको उस पर्सपेक्टिव पे वो करीब से नज़र आ रहा हो। उस पर अगर मैं नॉर्मल लेंस में चला जाऊंगा तो आपको एक डिस्टेंस फील होता है, तो वो एक डिफरेंस है सब लेंसेज का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दिस इज 16 mm, this is 16 mm a wide lens, so you can see the perspective आपकी normal eye से थोड़ा सा और distorted है ये। So here you go for the 24 mm, this is more or less whatever your eye see, a normal lens, 35 mm a normal lens, 50 mm normal between a telephoto, 85 is telephoto and 135 is telephoto. So in this image, a telephoto image, you can hardly see anything except for the character, but in the 16 mm you can understand the whole geography. Okay, she's sitting in a room with a PC and a lamp and it looks like a workspace of her. तो वो आपको समझ आता है कि ज्योग्राफी इस्टेब्लिश करने के लिए आप वाइडर लेंस पे जाते हैं, and when you need to emphasize on the expressions only, you go for the telephoto lenses.
जितना आप वाइडर लेंस पे जाते रहेंगे उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट होती रहेगी, द पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्रेम विल गेट डिस्टॉर्टेड, और जितना आप टेलीफोटो पे जाते रहेंगे वो एक फ्लैट करता रहेगा आपकी इमेज को। हम जिस तरह से आंख से देखते हैं वो एक मोर और लेस 35 mm में होता है कि आपको समझ आ रहा है कि ओके शी हैव अ कर्व फेस, उसका एक राउंड फेस है, थोड़ा सा लंबा फेस है, एजेस हैं। whereas in the 135 mm a telephoto lens, she looks really fat or feels like her face is really flat. तो ये differences होते हैं whenever you are doing a cinematography या portraits। तो आप हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में रखते हैं, except for the filmmaking में आप अपनी स्टोरी दिमाग में रखते हैं कि what your character is, कि आपका करेक्टर क्या है। आपका करेक्टर फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्टॉर्टेड सा आदमी है और अगर वो डिस्टर्ब सा आदमी चीज़ें हैं तो यू गो फॉर द 16 mm और 24 mm फॉर द क्लोजअप्स ऑल्सो। बट इफ़ यू शो समवन ही इज़ वेरी सॉर्टेड और स्टेबल देन यू कैन गो फॉर द नॉर्मल लेंसेज और टेलीफोटो लेंसेज। बट इन द फोटोग्राफी हम बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी भी किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो उसमें बहुत सारे मसले आते हैं कि मैं अच्छा नहीं लग रहा। यूजुअली हम एक दूसरी फोटो भी लिखते हैं, वो कहता है मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये लग रहा हूँ, मैं वो लग रहा हूँ, आई लुक फैट और आई लुक स्किनी और एनीथिंग। तो उसमें भी आप हमेशा ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि उस इंसान का किस तरह का शेप है। इफ़ यू वांट अ बेटर पिक्चर ऑफ हिम और हर, तो आप उस तरह का लेंस चूज़ कर सकते हैं कि ओके सो आई विल गो फॉर दिस लेंस फॉर दिस इमेज, फॉर दिस लेंस फॉर दिस इमेज। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत कोई अपीलिंग नहीं है देन यू कैन गो फॉर द टेलीफोटो लेंसेज और द नॉर्मल लेंसेज। इफ़ यू हैव अ रियली सीनरिक व्यू तो आप एक वाइड इमेजेस पे जा सकते हैं, यू गो फॉर द क्लोजअप ऑन द वाइड इमेजेस के आपके पूरी एक सीनरिक भी साथ में रजिस्टर हो रही हो। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ सवाल अब नहीं कर रहा मैं, बोले था रंग से। ओके, द शेप ऑफ लेंसेज हमने पहले पढ़ लिया। टाइप ऑफ लेंसेज, वो टाइप ऑफ लेंसेज थे कि कौन कौन से टाइप के लेंसेज होते हैं, वो मतलब नॉर्मल, वाइड एंड टेलीफोटो। नाउ द शेप ऑफ लेंसेज। सो यूजुअली यू हैव सीन द फिल्म्स जो कि किसी में फुल स्क्रीन पे आपके आ रही होती हैं और किसी में ऊपर और नीचे सिनेमास्कोप के बार्स आ रहे होते हैं। व्हेनेवर यू गो टू द सिनेमा तो ऊपर और नीचे ब्लैक बार्स होते हैं। तो जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो एक नॉर्मल लेंसेज होते हैं जो कि पूरी स्क्रीन आपकी कवर करते हैं, और जो एनामॉर्फिक लेंसेज होते हैं वो लेंसेज होते हैं जिनके ऊपर और नीचे सिनेमास्कोप की एक ब्लैक बार्स आ रही होती हैं एंड दैट्स बिल्ट इन। यूजुअली लोग ये भी करते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज में बाद में ऑन द पोस्ट प्रोडक्शन वो ब्लैक बार्स लगा लेते हैं, बट द एनामॉर्फिक लेंसेज शूट ऑन दिस एस्पेक्ट रेशो कि वो एक वाइड इमेज शूट करते हैं। इट दैट्स नॉट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टॉल, दैट्स हॉरिजॉन्टली वाइड। तो अगर आप स्फेरिकल लेंसेज में जाएंगे तो वो एस्पेक्ट रेशो शूट करता है 4:3:3 16:9, जो कि आप अगर देखते होंगे फॉर एग्जाम्पल दिस स्क्रीन इज मोर और लेस 3:2 और 16:3:2, तो आपको पूरा स्क्रीन पे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर यही हम एनामॉर्फिक लेंसेज पे कर रहे थे तो वो 2:1:2:3:9 का रेशो दिखा रहा था आपको, तो वो ये साइड ब्लैक बार्स होते हैं एंड दिस साइड वुड बी अ ब्लैक बार्स। इट गिव्स यू अ सिनेमैटिक लुक व्हेनेवर यू आर शूटिंग विद द गेट्स ऑन, द ब्लैक बार्स ऑन। इसीलिए आपकी जो बहुत सारी फिल्म्स हैं, जो सिनेमा के लिए फिल्म्स बनती हैं, जो कहा होता है वो एनामॉर्फिक लेंसेज पे शूट होती हैं कि इट गिव्स यू अ सिनेमैटिक लुक। और मेजरली जब भी हम सिनेमा दिमाग में आता है तो वो ये आता है कि एक वो वाइड इमेज होगी, एक ग्रेटर लैंडस्केप होगा, तो वो इसी वजह से होता है कि वो एनामॉर्फिक लेंसेज या वो एस्पेक्ट रेशो चूज़ कर रहे होते हैं। एस्पेक्ट रेशो आगे डिटेल में भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जी सॉरी, मुझे पूछना था कि when we are shooting a narrative film, या तो क्या कोई ऐसे narrative cues हैं जिससे हम ये decide कर सकें कि हम spherical lens use करें या anamorphic? यस, बेसिकली वेन एवर यू आर शूटिंग अ नैरेटिव आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि जॉन विक देखी होगी शायद आपने, जॉन विक इज शॉट ऑन एनामॉर्फिक लेंसेज, क्योंकि जॉन विक में उनको एक ग्लोरीफाई ब्यूटी लैंडस्केप मतलब एक वाइडर फ्रेम्स चाहिए थे उनको, कि अगर वो क्लब में एंटर होते तो क्लब में वाइडर फ्रेम्स भी हों, सिनेमैटिक ज़्यादा हो। वो उन्होंने अपने करेक्टर्स के ऊपर कम एम्फेसिस किया है और अपनी जोग्राफी और उन एक्शन मूव्स पे ज़्यादा एम्फेसिस किया है। उन्होंने एक बहुत सिनेमैटिक फिल्म बनाई है। इफ़ यू हैव सीन द जॉन विक, तो वो बहुत कोई स्टोरी टेलिंग में बहुत कोई नैरेटिव नहीं है उसके अंदर, स्क्रिप्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनका विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दे फोकस ऑन द विजुअल्स। अगेन इफ़ यू सीन द रेवेनेंट, तो वो स्फेरिकल पे शूट करके उन्होंने वाइड लेंस पे शूट करी है, बिकॉज दे वांटेड टू शो कि वो कैरेक्टर कितना करीब है। जब भी आप उस तरह की चीज़ शूट कर रहे होते हैं कि आपने दिखाना है कि मेरी और कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, मतलब ऑडियंस को कैरेक्टर के करीब रखना है, देन यू गो फॉर स्फेरिकल लेंसेज।
whenever you want to establish the geography in every shot and majorly in every shot, then you go for spherical lenses, क्योंकि spherical lenses आपको टॉप और बॉटम का मार्जिन ज़्यादा देता है। और जो अब जो एरी एलेक्सा के नए जो कैमराज हैं, द फुल फ्रेम कैमराज, वो स्फेरिकल रेशो शूट करते हैं मेजरली, तो वो उनका जो सबसे वाइड रेजोल्यूशन है ना वो स्फेरिकल पे है। तो जब भी आपको नैरेटिव शूट कर रहे हैं तो आपको चूज़ करना है, तो आपको लुक पे डिपेंड होता है वो कि व्हाट लुक यू वांट, डू यू वांट द क्लोजअप्स मोर और यू वांट टू शूट इट सिनेमैटिक। या साइबरपंक है तो वो एनामॉर्फिक पे शूट होगी कि वो एक सिनेमैटिक फिल्म है। अगर आप किसी स्टोरी टेलिंग पे जा रहे हैं, अगर बॉलीवुड पे भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी वो संजय लीला बंसाली की कोई फिल्म है, तो आई वुड से कि वो आप स्फेरिकल पे जाएंगे, क्योंकि वो उसकी जो आर्ट डायरेक्शन है उसको हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन डिज़ाइन की दिखानी होती है। इवन इफ द करेक्टर स्टैंडिंग ओवर हेयर, तो वो चाहता है कि मेरे जो टॉप पे शैंडलियर है वो भी नज़र आए। इफ़ यू वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेमेटोग्राफी तो आप स्फेरिकल पे जाएंगे। इफ़ यू वांट टू शूट इट सिनेमैटिक और अपना लैंडस्केप आपको वाइड करना है, तो यू विल गो फॉर द एनामॉर्फिक लेंसेज। होप इट्स क्लियर। Joker was shot on spherical lenses with the gates on. Spherical lenses और anamorphic में एक और डिफरेंस होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल spherical lenses पे 24 mm यूज़ कर रहे हैं, जब आप anamorphic पे 24 mm यूज़ करेंगे, it will give you the wideness of 16 mm sides, but not the top and the bottom. क्योंकि वो आप जब 24 mm नॉर्मल लेंस पे यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपको टॉप और बॉटम भी दे रहा होता है, साइड्स भी दे रहा होता है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हम सिनेमेटोग्राफर्स इस तरह शूट कर रहे होते हैं कि वी वांट क्लोजअप्स बट वी वांट इट सिनेमैटिक ऑल्सो। तो फिर हम ये करते हैं कि हम स्फेरिकल लेंसेज चूज़ करते हैं एंड वी पुट द गेट्स ऑन। उससे फ़र्क ये पड़ता है सिर्फ कि आपका बहुत साइड्स वाइड नहीं होती। यू चूज़ अ 24 mm, इट गिव्स यू अ गुड क्लोजअप वाइड पर्सपेक्टिव में, बट आप गेट्स लगा लेते हैं उस पर, तो वो सिनेमैटिक भी साथ में हो जाता है और आपका जो एक मीनिंग है कि आप करेक्टर के करीब रहें या आप एक पूरी चीज़ें दिखाएं, आपकी वो भी हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो ओके, 4:3 इज़ अ ओल्ड टीवी फोटोग्राफी। जब हम पहले देखते थे कि वो एक स्क्वायरिश टीवी होता था हमारे घरों में, डेट्स द 4:3। 16:9 इज़ वॉट एवर वी आर सीइंग टुडे, जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं या जो डिजिटल वीडियोज़ हैं। जो आज का टीवी है LCD वाला, वो 16:9 है, एंड द एनामॉर्फिक इज़ 2391। सो इफ़ यू सी कि पहले सेंसर्स ऐसे होते थे, देन इट बिकेम वाइड, और जब 239 कर रहे होते हैं तो यू आर कैप्चरिंग द होल इमेज, बट जो ये डिफरेंस है ना, दिस इज़ द ब्लैक बार्स, तो ये ब्लैक बार्स हो जाते हैं। So this is the aspect ratios of doing cinematography, the 3 aspect ratios. Next slide, please. Okay. So depth of field. Depth of field, आसान अल्फाजों में समझाऊँ तो ब्लर जिसको हम कहते हैं, कि हम एक इमेज लेते हैं वो ब्लर होती है, और एक इमेज लेते हैं अगर हम पोर्ट्रेट मोड पे लेते हैं फ़ोन में तो वो ब्लर होती है, और अगर नहीं लेते तो वो एक पीछे तक फोकस होता है। डेट्स बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड। बहुत अल्फाजों में डेप्थ ऑफ फील्ड करती क्या है बेसिकली, इट प्लेज अ वेरी एसेंशियल रोल इन सिनेमेटोग्राफी। जब भी आप किसी चीज़ को शूट कर रहे होते हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। कोई भी शॉट मीनिंगलेस नहीं हो सकता। whenever you shot anything, whenever a writer writes a scene, तो उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी शॉट एक बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के आपकी फिल्म के अंदर आ रहा हो या आप शूट कर रहे हो इसलिए कि आपको अच्छा लग रहा है, आप इसलिए शूट नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन कितने लेवल पे देनी है, किस तरह देनी है, वो आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत हेल्प करती है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हुआ हूँ और आप चाहते नहीं हैं कि मेरे पीछे जो भी स्क्रीन पे चीज़ है वो नज़र आए आपको, मतलब ऑडियंस को वो इन्फॉर्मेशन जाए, उनको सिर्फ ये फील आनी चाहिए कि हाँ सलार इज़ गिविंग ए लेक्चर और स्पीच और सेमिनार एनीथिंग, और बैकग्राउंड में जो भी चीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ऑडियंस के लिए नहीं है, तो यू वांटेड टू गेट ब्लर, सो यू गो फॉर द शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड, शैलो एंड द लार्ज। तो शैलो पे आप जब जाते हैं तो वो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, जहाँ पे आपका फोकस मार्क है वो आपका फोकस में आ जाता है, एंड ऑल योर इन्फॉर्मेशन, ऑल योर एम्फेसिस गोज ऑन दैट करेक्टर। जब आप लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड पे जाते हैं तो वो बैकग्राउंड तक फोकस होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एंड यू अगेन क्रिएट अ सेम शॉट, और बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में आपकी ये स्क्रीन है। अब स्क्रीन पे एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है विच इज़ अ मेटाफर टू द ऑडियंस, और विच इज़ अ हिंट टू द ऑडियंस, और एनीथिंग विच यू वांट योर ऑडियंस टू नो, तो फिर आप उसके लिए लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करते हैं, और
वो भी फोकस होता है, करेक्टर भी फोकस होता है, एंड दैट्स रीडेबल ऑल्सो। तो उन टाइम्स पे आप ये यूज़ करते हैं। अच्छा, ये करते कैसे? यू ऑल नो द लेंसेज, जो लेंस होते हैं, लेंस में एक अपर्चर होता है, एक फोकस रिंग होता है। फोकस रिंग से आप ब्लर फोकस कहाँ रखना है, आपको आगे रखना है, पीछे रखना है, बैकग्राउंड में रखना है, जहाँ भी रखना है, वो चीज़ हो सकती है। अपर्चर इज़ विच स्टार्ट्स फ्रॉम यूजुअली सीन 1.5, 2, 2.8, 5, 6, 11, 16। द ग्रेटर द नंबर, द लार्जर द डेप्थ ऑफ फील्ड। आप जितना 16 पे, 11 पे, 5.6 पे शूट कर रहे होंगे जब आप अपने अपर्चर को, तो आपकी बैकग्राउंड उतना फोकस होता जाएगा। और जब आप किसी 1.5, 1.4, 2 पे शूट कर रहे होंगे तो आपका फोकस उतना एक सेंट्रलाइज होता रहेगा और बैकग्राउंड ब्लर होता रहेगा, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ब्लर होता रहेगा। तो आप अपने कैमरा के लेंसेज के अपर्चर से आप वो चीज़ चेंज कर सकते हैं अप टू द कि आपको कितना वो चाहिए। मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ आपको लगता है कि बड़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है या कोई एक मेमोरी है, और आप इमेज लेते हैं 1.4 अपर्चर पे, और पीछे आपको समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी जगह थी, ये क्या आता है, वो इतना ब्लर आउट हो जाता है। तो फिर आप उसका अपना अपर्चर, फ़ोन्स में भी अब तो अपर्चर्स आते हैं, तो आप अपना नंबर अपर्चर का आगे ले जाते हैं, यू गो ऑन 8, 7, 5.6, और फिर आप शूट करते हैं। यूजुअली जो फिल्म्स होती हैं सिनेमा के लिए, नॉट फॉर द OTT एंड थिंग्स, जो सिनेमा के लिए होती हैं वो 4 अपर्चर या 5.6 अपर्चर्स पे शूट हुई हुई होती हैं। उनकी बेसिक वजह क्या होती है? डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब आप 1.4 अपर्चर पे आते हैं ना, तो आप यूजुअली जब अपनी स्क्रीन में या लैपटॉप पे इमेज देखते हैं तो आपको लगता है कि करेक्टर फोकस्ड है। पर जब आप उसी इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं एक वाइडर सिनेमा की स्क्रीन पे, तो आपको समझ आता है कि नहीं, नाक फोकस है और आँख और कान ब्लर है, या आँख फोकस है और कान ब्लर है और नाक ब्लर है। तो इसलिए फिल्म्स में कहा जाता है कि फिल्म्स में आप 4 अपर्चर या 5.6 पे शूट करें, ताकि एटलीस्ट आपकी नोज़, करेक्टर की नोज़, आई और ईयर फोकस्ड हो। एटलीस्ट करेक्टर की पूरी यहाँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट फोकस में आपको मिले। वरना जब आप सिनेमा पे देख रहे होते हैं तो आपको वो ब्लर लग रहा होता है, क्योंकि बहुत छोटा सा एम्फेसिस हो जाता है, सिर्फ आँखें फोकस होंगी या नोज़ फोकस होगी या ईयर फोकस होंगे, वो आपको छोटी स्क्रीन पे समझ नहीं आता। जब हम छोटी स्क्रीन के लिए शूट करते हैं OTT के लिए या कोई DVCs या TVCs, तो हम 1.4 शूट कर लेते हैं अपर्चर में, क्योंकि हमें पता है कि वो छोटी स्क्रीन पे देखना है, वो ब्लर आउट नहीं होगा। बट whenever you will project it on 77 mm और 65 mm for the cinema screens, तो वहाँ पे वो आपको ब्लर फील करेगा, क्योंकि उसका अपने बहुत एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड रखी हुई है। तो आपको कहीं मिडिल ग्राउंड में आना पड़ता है, नॉट मोर शैलो, नॉट मोर लार्ज डेप्थ, तो बीच में कहीं आना पड़ता है आपको। काफ़ी फिल्म पाकिस्तान में इस तरह की शूट हुई थी बीच में, जो कि बहुत शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पे शूट हुई थी। तो जब वो सिनेमा में प्रोजेक्ट हुई तो दे हैड टू रीडू द शूट्स। वो जो पार्ट्स थे वो उनको रीडू करने पड़े, वो क्लोजअप्स उनको हटाने पड़े, उनको वाइड शॉट्स या मिड शॉट्स लगाने पड़े, क्योंकि क्लोजअप में बहुत फील हो रहा था उनको कि नहीं, दिस इज़ अ ब्लर आउट शॉट, करेक्टर के एक्सप्रेशंस नहीं आते। और ऑब्वियसली जब आप भी इमेज देख रहे होंगे, आपको मेरी आँख फोकस लग रही हो, कान ब्लर लग रहे हो, तो आप भी बोलेंगे यार दिस इज़ समथिंग एलियन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। So this is a very good frame and this is a textbook frame of cinematography, इसलिए मैंने 2 बार लगाया है। This is a major use of large depth of field. You see the focused here, you see focus over here also, and you see focus over here also. Imagine this shot on a portrait mode of a phone. तो शायद आपको सिर्फ ये करेक्टर नज़र आ रहे होते, वहाँ वो मिडिल ग्राउंड वाला इंसान जो है आपको लग रहा होता है कि हाँ दिस इज़ अ ह्यूमन, पर वो मर्द है, औरत है, वो क्लीन शेव्ड है, इतना रजिस्टर नहीं हो रहा होता। और जो बाहर शायद बच्चा है वो तो कभी नज़र आ ही नहीं रहा होता आपको सिर्फ एक ब्लैक सिल्वेट या ब्लैक एक शेडो सा नज़र आ रहा होता, वो डेट्स अ ह्यूमन और एनिमल और अ प्रॉप, आपको समझ नहीं आता। इनको सारी चीज़ें दिखानी थी। इफ़ आई एम नॉट फराज भाई, ये उसमें अडॉप्ट कर रहे होते हैं या बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे होते हैं सीक्वेंस में? ऐसी कोई सीक्वेंस होता है कि बच्चे के ऊपर कुछ हो रहा होता है, हाँ बच्चे के अराउंड है ना, ऐसी कुछ होता है। हाँ सॉरी। तो इसमें जो बैकग्राउंड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, कि वो बच्चा दिखना है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी इसमें डायलॉग कन्वर्जेशन है, डायलॉग्स हैं, वो उस बच्चे के अराउंड बात हो रही है। और अगर आप उस बच्चे को वो जो अच्छा जो बात हो रही है, दे आर बेसिकली गिविंग देयर चाइल्ड टू अनदर पर्सन, और उसमें बच्चा जो है वो बाहर खेल रहा है फिर भी। सो यू सी द इनोसेंस ऑफ द किड, कि वो बाहर खेल रहा है और यहाँ उसके पेरेंट्स उसको किसी और को गिव अवे कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें दिखाने के लिए लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड पे जाना पड़ता है। नेक्स्ट शॉट प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस इज़ माय शॉट।
ये मुझे लगता है कि ये भी लास्ट डेप्थ ऑफ फील्ड पे शॉट लिया हुआ है मैंने। उसकी वजह मुझे ये थी कि अगर मैं यही शॉट 1.4 अपर्चर पे लेता तो करेक्टर फोकस होता, बाकी सब कुछ बहुत ब्लर होता। और जो मेरा एम्फेसिस था वो इस पर यह था कि ही इज़ वॉचिंग द हॉट एयर बलून्स। तो वो लास्ट डेप्थ ऑफ फील्ड पे है कि आपको करेक्टर भी देखे, आपको बैकग्राउंड भी देखे, आपको सारी चीज़ें देखें, सब चीज़ें रजिस्टर हो। ऑल्दो दीज hot air balloons are on the post, these are not actual ones, but still. Next shot, please. Okay, so you have seen this film, The Pursuit of Happiness. So I guess this is the last shot of the film कि जब उसकी लाइफ पूरी सही हो जाती है और सब कुछ हो जाता है and he walks in the crowd, उसकी जॉब लग जाती है। तो here, this is a telephoto lens and this is shadow depth of field. आपका पूरा emphasis उस करेक्टर पे होगा, आपको कोई और इंसान पे नहीं जा रहा। ऑल्दो दिस मैन इज़ लुकिंग हेयर, दिस मैन इज़ लुकिंग हेयर, दिस वुमन इज़ लुकिंग हेयर, दिस वुमन इज़ लुकिंग हेयर, बट आपका सारा एम्फेसिस जो है वो इस करेक्टर पे ही रहता है। तो दिस इज़ अ यूज़ ऑफ अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कि आप दिखाना क्या चाहते हैं अपने फ्रेम पे, इंफॉर्मेशन कितनी देना चाहते हैं। बहुत बार ऐसे शॉट्स भी बहुत बार लास्ट डेप्थ ऑफ फील्ड पे लिए जाते हैं व्हेन दे वांट टू शो कि वो किस लोकेलिटी में, किन लोगों के बीच में है, क्या उस सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं। तब आप यही शॉट एक लास्ट डेप्थ ऑफ फील्ड पे ले जाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि देयर इज एशियन गाय इन यूरोप एंड यू वांट टू रजिस्टर दैट दिस इज़ नॉट एशिया, दिस इज़ यूरोप, तो आप फिर वो लास्ट डेप्थ ऑफ फील्ड पे शॉट लेंगे कि यू सी द यूरोपियन पीपल गोइंग एंड एशियन पर्सन वॉकिंग टूवर्ड्स द कैमरा। तो आपको वो रजिस्टर हो जाएगा, ओके दिस इज़ द एशियन पर्सन इज़ इन द यूरोप। अगर उसी में अगर हम इस शेयर डेप्थ ऑफ फील्ड पे लेंगे तो आपको समझ कभी नहीं आएगा कि वो यूरोप में एशियन बंदा था या डेट्स एशिया। तो दिस इज़ द बेसिक रीजंस। जैसे नीचे वाला शॉट है, यू सी अ गाय स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम बट यू कांट सी हिज फेस, यू कांट सी हिज एक्सप्रेशंस। आपका सारा एम्फेसिस उस अपना स्पाइडरमैन पे ही है, आई फॉरगॉट हिज नेम, सॉरी। आपका सारा एम्फेसिस उस पे ही है, हाँ, so आपका सारा एम्फेसिस उस पे है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Okay, this is also a great example for the shallow depth of field, and this is the shallow. You barely see what's in the background, and here you can see what's in the background where he is standing. He is in some sort of office space, and here if I say he's in the hospital, you will accept it. If I say he is in his living room, you will accept this because you can't just see what's in the background. So yeah. Most probably 8 or 11. नीचे वाला yes is 4. If you go on 1.4, अगर उससे और नीचे जाते तो फिर ये जो इतनी डिटेल है ये भी नहीं होती because it's a telephoto lens, it's majorly a 50 mm lens, तो वो और blur करता है। अच्छा एक और चीज़ थी, I missed it, याद आती दोबारा बताता हूँ, I just forgot it। तो आप इस तरह से शेलो और लार्ज को यूज़ कर सकते हैं अपनी फिल्म्स में। Next slide, please. Okay, so these were some basic rules of जी। या बताता हूँ। पाकिस्तान में ना सिनेमेटोग्राफी जो है ना वो कंसिडर करी जाती है टीवीसी, फैशन फिल्म, म्यूज़िक वीडियो। तो हम जितनी, क्योंकि हमारे पास फिल्म्स बनती नहीं है, वी डोंट हैव एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वी डोंट हैव सिनेमास, तो हम जितनी भी बातें करते हैं ना मेजरली जो बच्चों से बातें करते हैं या जब भी सर पढ़ा रहे होते हैं या चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो हम अपनी प्रेफरेंस इसलिए बता रहे होते हैं ताकि जब आप फैशन फिल्म्स या जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप यही करेंगे, या आप अगर मैक्सिमम शॉर्ट फिल्म से भी जाएंगे तो वो छोटी स्क्रीन के लिए होती हैं, दैट्स नॉट अ फॉर सिनेमास। तो वो इस पे पर्सपेक्टिव पे बता रहे होते हैं कि 2.8 रखें या उससे कम रख लें या 4 तक रख लें। सिनेमेटोग्राफी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हम लोग प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जो काम करते हैं उसमें ज़रूरत नहीं है 5.6 की, क्योंकि हम सिनेमा के लिए बहुत रेयर काम करते हैं। पाकिस्तान में फिल्म्स बहुत रेयर बनती हैं। हमारे कुछ एड्स हैं जो कि सिनेमा में प्ले होते हैं, लेकिन एड्स इज़ अ सिनेमैटिक, इज़ अ ब्यूटी ओनली, तो उसमें आपका कोई इतना रॉकेट साइंस सिनेमेटोग्राफी दिमाग नहीं होता, तो वो अगर थोड़ा ब्लर आउट भी होता है तो इट्स फाइन, क्योंकि वो मेजरली तो टीवीज़ पे चल रहे हैं, रेयरली अगर सिनेमा चलता है, तो वो एक बड़ा रीज़न है। पर जो रूल्स हैं हम वो रूल्स से बात कर रहे थे। सर जो समझा रहे थे वो हम सर समझा रहे थे कि आपने जो आगे जाके ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ रूल्स जो हैं, सही है, क्योंकि हमारी प्रेफरेंस जो होती है वैसे मैं अदनान रफ़ीक इज़ माई फोकस पुलर, खड़े हो जाते हैं भाई,
Adnan Rafiq is my focus puller since the day one. Focus puller is a guy जो हम अभी जब भी शूट करते हैं तो you guys shoot on the auto focus lenses कि आप क्लिक करते हैं and the place got focus. But whenever we do on the cinema cameras, हम अभी प्रैक्टिकल भी करेंगे उसका, उसमें एक मशीन होती है वो लेंस के ऊपर अटैच हो जाती है एंड ऑन द वायरलेस रिमोट यू रोटेट द रिमोट और वहाँ फोकस रिंग हिलता है एंड यू कैन चेंज द फोकस. तो अदनान रफ़ीक इज़ द माई गो टू गाय ऑलवेज, जो कि मेरा फोकस पुलर होता है कि मैं जब भी कोई हैंडी शूट कर रहा हूँ या कोई मूवमेंट्स कर रहा हूँ, वो मैनुअल लेंसेज होते हैं, उसमें ऑटो फोकस मार्जिन नहीं है, ऑटो फोकस होता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं होता सिनेमा लेंसेज में. तो अदनान ऑलवेज डू द फोकस पीछे से, तो उसकी मेरी केमिस्ट्री बन चुकी है कि अदनान आई वांट टू शूट ऑन द बैक, फोकस ऑन द बैकग्राउंड नाउ, ऑन द फोरग्राउंड नाउ, तो वो उस तरह से हम करते हैं. सो लेट्स मूव टू द लाइट. अगर कोई फ्रेमिंग या उस चीज़ों पर सवाल है जी. शटर स्पीड फॉर द फ्रेम. ओके. जब आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो आप शटर पे जा रहे होते हैं. आई विल गेट ऑन द पॉइंट. जब भी आपने एक चीज़ को वीडियो करते हुए या फ़ोटो करते हुए, वीडियो करते हुए जो भी आपका FPS होगा, द फ्रेम रेट पर सेकंड जो भी होगा आपका, आपने उसका डबल शटर रखना होता है. इफ़ यू आर शूटिंग ऑन द 24 फ्रेम्स दैन 48 शटर रखना है. इफ़ यू आर शूटिंग ऑन द 50 फ्रेम्स आपको 100 शटर रखना है. इफ़ यू आर शूटिंग ऑन द 100 फ्रेम्स आपको 200 शटर रखना है. वो बेसिकली करता क्या है, दीज बोथ थिंग्स फ्रेम पर सेकेंड एंड द शटर स्पीड आर प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट टू ईच अदर. वो करता क्या है कि जब आप 24 फ्रेम्स पे हैं तो आपने 50 शटर रखा हुआ है, तो वो 50 बार वो 1 सेकंड के अंदर वो शटर ब्लिंक करेगा और वो आपको 24 फ्रेम्स के हिसाब से जो लाइट चाहिए उसको वो लेगा. सॉरी, यहाँ याद आ गई एक और बात. ऊपर जाते हैं और एक और, हाँ इसी पे नीचे वाले पे नीचे आ जाए. ओके, सो दिस वो आई विल मिस इट, इसलिए बता रहा हूँ फिर से कि जब आप अपर्चर अपना बढ़ाते हैं फॉर द लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड तो आपकी लाइट कम होती रहती है. ऐसा नहीं है कि ये दोनों शॉट्स एक बार आपने लाइट करी और आपने अपना अपर्चर 1.54 पे लेकर आए और जब आप अपना 11 या 8 पे लेकर आए तो दिस शॉट वुड बी अ डार्कर शॉट, तो आपको वो लाइट बैलेंस करनी पड़ती है फिर. तो इसलिए भी एक रीज़न है कि सिनेमेटोग्राफर नहीं करते शूट बढ़ा के अपर्चर, लाइट करनी पड़ती है ज़्यादा. तो जब आप अपर्चर बढ़ाएंगे तो आपकी लाइट कम होती रहेगी उस फ्रेम की, तो आपको लाइट बढ़ानी पड़ेगी, ISO पुश करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ बढ़ानी पड़ेगी. जब आप अपर्चर नीचे करते रहेंगे देन आपकी लाइट बढ़ती रहेगी, तो आपको फिर वो बैलेंस करनी होगी, तो वो आपको इस तरह करना पड़ता है. हाँ, आगे आ जाए. तो आपका सवाल था कि तो आप इस तरह से हमेशा जज करते हैं कि आप जितने फ्रेम्स पे हैं उसका आप डबल शटर स्पीड रखते हैं ताकि आपके फ्रेम्स में कोई भी जर्क ना आए. अगर मैं 24 फ्रेम्स पे हूँ और मैं 24 शटर रख लूँ तो वो एक जर्क फील होगा, आपको एक लॉन्ग एक्सपोजर ट्रेल बनती हुई नज़र फील होगी. और अगर मैं 24 फ्रेम पे हूँ और मैं 100 या 200 शटर स्पीड रख लूँ तो आपको बहुत ज़्यादा जर्क फील होगा. जो आपकी फ्लूइड मूवमेंट होती है वो आपको हमेशा FPS के डबल उस पर समझ आती है. वो एक पूरा फॉर्मूला होता है, मेरे पास में फॉर्मूला है नहीं, मैं शायद बाद में सरफराज आपको समझा देंगे. पूरा फॉर्मूला भी होता है, वो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं इतनी रख रहा हूँ तो कितनी वो आएगी. और वैसे सिनेमा कैमराज होते हैं उनमें शटर स्पीड नहीं होती, उनमें शटर एंगल्स होते हैं. तो डेट रिमेन्स द कांस्टेंट 180 डिग्रीज़. तो वो हमेशा सिनेमा कैमराज में, वीडियोस में वो कांस्टेंट रहता है. आप फ्रेम रेट चेंज करते रहें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको. और जब अच्छा वो करते भी एक और चीज़ क्यों है, जब आप भी फ्रेम रेट बढ़ाते हैं तो आप डबल स्पीड करते हैं शटर की, तो वो आपको लाइट और कंज्यूम करनी होती है. फिर कैमरा लाइट ज़्यादा कंज्यूम करता है. वो क्यों करता है, क्योंकि बेसिकली शटर स्पीड होती क्या है कि मैंने 1 सेकंड में 50 शटर स्पीड रखी हुई है, 1/50 रखी हुई है, तो वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार ब्लिंक करेगा शटर. तो उस 50 टाइम्स में जितनी बार 1 सेकंड के अंदर लाइट को एक्सेस मिला लेंस के अंदर आने का, उसने लेंस लाइट ली और उसने एक आपको इमेज दिखा दी. अगर मैं यही उसको बोलता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर वो 100 बार ब्लिंक करे तो वो उसने टाइम कम कर दिया लाइट का एक्सेस का, तो आपकी इमेज डार्कर होगी. अगर मैं उसको बोलता हूँ कि 500 टाइम्स कर ले 1 ही सेकंड में, तो उसको और कम टाइम मिला लाइट का एक्सेस का, तो वो इमेज और डार्क होगी. तो जितना आप अपना फ्रेम रेट बढ़ाते रहते हैं, आपको शटर स्पीड बढ़ानी पड़ती है ताकि आपकी फ्रेमिंग जो है उसमें जर्क या लॉन्ग एक्सपोजर्स ना आ रहे हों, वो आपकी स्मूथ जा रही हो साथ. सो एनीथिंग एल्स और वी शुड मूव फ्रॉम द लाइटिंग टेक्निक्स. जी हाँ, वो समझाया मैंने. आप आई गेस यू आर टॉकिंग टू हर. वो
पूरा समझा दिया कि वो उसमें होती है। सो बेसिकली मोशन ब्लर इज अ थिंग जो मैं बता रहा था कि आपको एक लॉन्ग ट्रेल्स और लॉन्ग एक्सपोजर्स नज़र आ रहे होते हैं, तो वो मोशन ब्लर होता है। यू बेयरली कांट सी द फोकस। जिस तरह हम बहुत बार रनिंग फोटोग्राफी देखते हैं जिसमें फोटोग्राफर्स रन कर रहे होते हैं या कार रेसिंग की फोटोग्राफी होती है, तो वो बड़ी स्टैटिक होती है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा शेकी होता है, ब्लर होता है, लेकिन कार बहुत स्टैटिक होती है, वो मोशन ब्लर में नहीं होती। वो वजह ये होती है कि वो बहुत हायर शटर स्पीड पे शूट कर रहे होते हैं, कि वो आप फॉर एग्जांपल 2000-1500 शटर स्पीड पे शूट कर रहे होते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो कार इतनी जितनी स्पीड में होती है ना वो स्टैटिक हो जाती है। और अगर वही शॉट वो लोग 50 शटर स्पीड पे लेंगे ना तो वो आपको एक सिर्फ एक ब्लर लाइन्स दिखेंगी, कुछ और नहीं दिखेगा, क्योंकि द कार इज़ मूविंग ऑन 200 माइल्स पर आवर और 300 माइल्स पर आवर, तो वो आपको बहुत एक ब्लर लाइन्स दिखेंगी खाली। तो वो दैट्स अ डिफरेंस। लाइटिंग टेक्निक्स प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so the basic rule of lighting any setup is 3-point light: the key light, the fill light, the back light. So the key light, एक slide आगे करते हैं please. Okay, so the key light is whatever the maximum source of your light. So you see 100% light, the maximum source जो होगी. The fill light is, the key light is basically यहाँ पे अगर key light की बात हो तो key light is मेरी, शायद अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो शायद ये light मेरी key light है. This is the maximum source I'm having and this saver is the fill light. कि आपको जहाँ पे यहाँ पे जो shadows दिख रहे थे मेरे, तो वो आपको एक white से इस light से दिख रहे हैं, तो वो fill कर रहा है shadows को. This is the key light and this is the fill light. और अगर मेरी back की बात करें तो if you can see the rim light over here SMD से. अभी black image है, अगर इसको white image एक slide ऊपर करते हैं, हाँ अब आपको मेरी चीज़ बढ़ती हुई दिख गई होगी, बैकलाइट दिख रही होगी, वाइट इमेज आ गई, तो एक स्लाइड आगे करते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, हम ये 3 पॉइंट्स होते हैं ना, ये टेक्स्ट बुक पॉइंट्स हैं कि की लाइट, बैकलाइट एंड द फिल लाइट। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 लाइट्स नहीं हैं। हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं इस बात पे कि ओके 3 पॉइंट लाइट है, 3 पॉइंट लाइट इज़ अ बेसिक टेक्निक, तो 3 लाइटों से हो जाना है ये काम। 3 लाइट और 3 पॉइंट्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। 3 पॉइंट्स हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप की लाइट पे 4 लाइट्स भी लगा सकते हैं। इट कैन बी 7 लाइट्स, इट कैन बी 1000 लाइट्स। कि अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मेरी की लाइट अगर फॉर एग्जाम्पल सारे सेंटर्स करता हूँ अपने ऊपर, तो दिस इज़ माई की लाइट, तो वो 1 2 3 4 5 6 लाइट्स मेरी की लाइट हैं। अगर मेरा एक सेवर है, मैं यहाँ पे 2 सेवर और लगाता हूँ, तो इट विल बी फिल लाइट। तो वो एक लाइट नहीं है। जब भी हम शूट करते हैं तो हम कभी इस तरह शूट नहीं कर रहे होते कि हम यूजुअली जब शूट कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ होगा, उसका शॉट हो रहा होगा इतना सा। ऐसा नहीं होता, हमें पूरा सीन लिट कर रहे होते हैं। तो अगर हम सीन लिट कर रहे हैं और हमें कोई भी इंसान किसी लिविंग रूम में खड़ा हुआ है, उसके राइट पे विंडोज़ हैं और लेफ़्ट पे विंडोज़ नहीं है, राइट पे विंडोज़ हैं और बैक पे फॉर एग्जांपल उसके एक और विंडो है या कोई चीज़ है, एंड वी आर अज्यूमिंग कि जो सन है उस घर में वो राइट साइड पे है, तो वो जितनी भी विंडोज़ होंगी उन सब से वो की लाइट होगी, सोर्स लाइट होगी। सो की लाइट इज़ बेसिकली द सोर्स लाइट। हम एक पूरे सीन को जब भी लिट कर रहे होते हैं तो हम एक सोर्स बनाते हैं। सिनेमेटोग्राफर अपने दिमाग में एक सोर्स बनाता है जो कि जस्टिफाई करता है अपने फ्रेम के अंदर। वो डे लाइट में हम यूजुअली कहते हैं कि सन इज़ द सोर्स, इंडोर डे लाइट में हम कहते हैं यूजुअली द सन इज़ द सोर्स। जब हम रात शूट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं लैम्प इज़ द सोर्स और द टीवी इज़ द सोर्स। इस तरह हम पहले एक सोर्स बनाते हैं, द की लाइट। आप फिर उस की लाइट पॉइंट से लाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि मैं घर के अंदर खड़ा हुआ हूँ और मेरे यहाँ पे विंडोज़ हैं और एक दरवाज़ा है, ऑब्वियसली सन अगर उस तरफ है तो वो एक विंडो से नहीं आएगा, वो सारी विंडोज से आएगा। तो वो 3 पॉइंट तो रहेंगे लेकिन वो 3 लाइट्स नहीं रहेंगी। और हमेशा सोर्स लाइट जो होती है सबसे बिगेस्ट होती है, फिल लाइट जो होती है वो उससे कम होती है, एंड द बैक लाइट जो होती है वो उससे स्ट्रॉन्ग होती है। वो बैक लाइट होती है फिल से स्ट्रॉन्ग होती है या कम भी हो सकती है, इट्स अप टू यू। बट की लाइट जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी हमेशा। फिल और बैक आपकी मर्जी होती है। अच्छा, इस सब में ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह करें कि जो भी की लाइट है, अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सिटिंग ऑन अ सोफा इन माय हाउस और मेरे बराबर में एक लैम्प है और एक टीवी है, तो ज़रूरी नहीं है कि लैम्प को मैं की लाइट बनाऊँ। आई कैन मेक द टीवी की लाइट, कि मैंने लैम्प का बिल्कुल फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल डिमर डाउन करके बिल्कुल रखे हुए हैं और की लाइट जो टीवी है वो एक बहुत ब्राइट है। तो आपके ऊपर होता है कि आपको बनाना क्या है। उसमें कोई लॉजिक काम नहीं करती कि नहीं लैम्प ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते तो लैम्प शुड बी द की लाइट, वो ज़रूरी नहीं है उस तरह से। अगर विंडोज़ हैं, अगर डे लाइट है, विंडोज़ हैं और मैं कहता हूँ कि विंडोज़ मैंने बंद कर दी हैं या पर्दे लगा दिए हैं और बहुत सॉफ्ट कर दिया उनको, उसके कंपैरेटिवली में जो हाउस होल्ड लाइट्स होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है हम घर में जो होते हैं डे लाइट में भी लाइट्स ऑन करते हैं ना,
तो लेकिन हमारी सोर्स लाइट जो है वो उस वक्त बल्ब हो जाता है। हमारी सोर्स लाइट डे लाइट में भी ज़रूरी नहीं है कि सन ही रहे। तो आपको पहले चूज़ करना होता है अपने फ्रेम में कि आपने अपनी सोर्स लाइट बनानी क्या है। देन यू प्लेस अ सोर्स लाइट, देन उसके हिसाब से आपने फिल लाइट करनी होती है। फिल लाइट जो होती है वो बेसिकली दो तरह से होती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइट जो हो ना, जब भी बात हो कि यार फिल लाइट होनी है, बिलाल इज़ माई गैफर, मैं और बिलाल मिलकर लाइट करते हैं। आई टेल हिम एवरीथिंग कि मुझे ये मूड चाहिए, इस तरह की लाइट चाहिए, ये करना है, ही डज द थिंग्स। तो जब हम फिल लाइट कर रहे होते हैं, फिल लाइट जो होती है आपने की लाइट लगाई, आपने फिल, आपको अभी तक समझ आ रहा है कि जो भी शेडोज़ आ रहे हैं वो फिल हो जाएंगे उस तरफ से, आपने एक स्मॉलर लाइट लगाई और वो फिल हो गए। इट कैन बी अ नेगेटिव फिल ऑल्सो, कि आपने जो भी चीज सोर्स आ रही थी आपने और ब्लॉक कर दी, आपने और कॉन्ट्रास्टी कर दिया। सो नेगेटिव लाइट इज ऑल्सो अ लाइट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाइट लगाने को लाइट कहें, नेगेटिव करना, चीज़ों को ब्लॉक करना भी एक लाइटिंग टेक्निक है, कि नेगेटिव लाइट कर लिया आपने, फिल लाइट नेगेटिव कर दी। आगे एग्जांपल्स हैं वो हम देखेंगे तो और समझ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नीचे जाना है। ओके, सो दिस इज द की लाइट, you see a good ratio of the light over here, and this is the fill light। जो भी शेडोज आ रहे थे बस वो इतनी फिल है कि वो शेडोज ना आए, द करेक्टर डजंट लुक अगली, और वो रियलिस्टिक लगे कि अगर ये इतनी सॉफ्ट लाइट है यहाँ से तो इतने शेडोज नहीं आ सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से बाउंस होकर लाइट वापस आती है। आप घर में भी होते हैं तो दीवार से बाउंस होकर आती है, पर्दे से आती है, सीलिंग से आती है, बहुत जगह से लाइट बाउंस होती है। तो डेट्स द फिल लाइट एंड द बैक लाइट। बैक लाइट इसने मेजरली कम रखी हुई है, उसकी वजह यह है कि उसकी फिल लाइट, की लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, की लाइट राइट पे है। अगर उसकी की लाइट बैक होती तो एक डिफरेंट थिंग होती। और बैकलाइट इंपॉर्टेंट होती है हमेशा हर सीन में। उसकी वजह ये होती है कि बैकलाइट आपके करेक्टर को बैकग्राउंड से सेपरेट करती है हमेशा। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड ब्राउनिश ही होता, ब्राउनिश बैकग्राउंड होता और बैकलाइट नहीं होती, तो यू वुड नेवर अंडरस्टैंड कि कब उसका शर्ट या जैकेट ख़त्म हुआ और कौन सा बैकग्राउंड है, वो मर्ज हो जाता दोनों। तो व्हेनेवर यू कीप अ बैकलाइट तो वो आपके करेक्टर को आपके बैकग्राउंड से स्टैंड आउट करवा देता है, उसका एक उसको स्टैंड आउट पॉप करवा देता है बेसिकली। अगर ये बैकग्राउंड ब्राउन होता तो शायद आप, अगर बैकलाइट नहीं होती तो आप समझ नहीं पाते कि कब जैकेट ख़त्म हुआ और कब वो हुआ, तो वेक लगता। क्योंकि आपका करेक्टर हमेशा, जब भी आप करेक्टर शूट करते हैं सिनेमेटोग्राफी में या कोई भी करेक्टर करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप हमेशा ख्याल रखते हैं कि ऐसा ना हो कि वो इमेज क्लटर हो रहा हो, इमेज बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा हो कि ऑडियंस जब देख रही हो, चीज़ें देख रही हो तो उनको समझ ही ना आ रहा हो देखना इसमें से क्या है। वो जो रूल्स है वो भी इस वजह से थे कि ऐसा ना हो कि ऑडियंस फ्रेम खुलते ही समझना शुरू करते हैं अच्छा देखना क्या है, कौन सी चीज़ देखनी है। तो वो रूल्स इसलिए थे कि आपका डायरेक्ट एम्फेसिस वहाँ जाएगा। लाइट में भी ऐसी है कि अगर आप बैकलाइट रखेंगे हमेशा तो वो आपको सेपरेट करती हैं। अब फिल्म जब करते हैं तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइट रखते हैं। वो हम आगे और एग्जांपल्स हैं वो हम सुन लेते हैं। आगे चलें प्लीज़। ओके, दिस इज़ माय फ्रेम फ्रॉम द शान शूप नूडल्स TVC। मुझे बड़ा पसंद है अपनी ये लाइट। तो अगर आप इसमें देखते हैं ना, सो दिस इज़ द की लाइट, दिस इज़ द की लाइट, this is the fill light, and this pink light is the backlight। this pink light is the backlight। इसकी जो की लाइट है वो ये लैम्प सोर्स है, that's why it's more towards warmer tone। और जो इसकी की लाइट है that's the windows, that's why it's towards the cool light। तो वो ज़रूरी नहीं कि आपका एक ही फ्रेम में अगर आपने एक सोर्स बनाई है तो वो दोनों कैरेक्टर्स तक आ रही हो। शी इज़ मोर नियर टू द लैम्प, तो उसकी मुझे लगता है कि सोर्स लाइट वो बनाऊँ। और जो विंडोज़ हैं वो बहुत नीचे नहीं है, विंडोज़ इज ऑन अ सर्टेन हाइट, तो वो उसका जो भी इम्पैक्ट है वो आगे फॉल हो रहा है। इफ़ सपोजिंगली अगर मेरी विंडो यहाँ पर है और मैं यहाँ लाइट रखता हूँ तो उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो इस पॉइंट पे होगा, एंड द ग्रिल नेक्स्ट टू द लैम्प इज सिटिंग ओवर हेयर, तो उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा उसका। तो इसलिए मैंने अपनी की लाइट भी इसमें चूज़ करी थी कि एक उसकी वो होगी, इसकी ये होगी। ऑल दो जो दोनों की बैक लाइट है वो पर्पल मुझे लगता था कि वो कि बैकग्राउंड से आ रही है, तो वो है। अच्छा है ये शॉट मुझे लगता है। नेक्स्ट फ्रेम प्लीज। ओके, सो द कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट स्लाइड, एक स्लाइड आएगा। नेक्स्ट। ओके, द कॉन्ट्रास्ट।
जब भी आप कुछ शूट करते हैं तो आप एक अपने दिमाग में इस सीन को पढ़ते हुए उसका नैरेटिव समझते हुए एक कॉन्ट्रास्ट डिसाइड करते हैं कि अगर मेरी कोई भी फिल्म है वो एक बहुत जैसे ये फ्रेम्स देखेंगे अगर तो ये बहुत क्लिनिकल और बहुत आपको देख के लग रहा है कि एक बहुत क्लीन है, बहुत नीट है। आपकी फ़िल्म का मूड क्या है, फेल्ट गुड है, या आपका जो एरिया है जो आप सेटिंग में शूट कर रहे हैं वो एक हॉस्पिटल है या वो घर है या क्या चीज़ है। तो आपने नैरेटिव को दिमाग में रखते हुए आप उसके हिसाब की लाइट का कॉन्ट्रास्ट सोचते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है इसमें बहुत लो कॉन्ट्रास्ट है, इसमें अपना रेशोज़ जो है की लाइट और फिल लाइट के वो बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत बैलेंस्ड। जैसे आप इसकी लाइट देखते हैं तो की लाइट इसकी जो हार्ड लाइट आ रही है उसमें और इसकी जो फिल लाइट है उसमें बहुत कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत करीब हैं वो, तो बहुत लो कॉन्ट्रास्ट है। अगेन फॉर दिस जिसकी की लाइट है और जो फेस लाइट है, जो बैकग्राउंड लाइट है वो बहुत बैलेंस्ड है, तो बहुत एक लो कॉन्ट्रास्ट इमेजेस हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि आपका अपना या इट्स अप टू यू कि आपका अपना मूड क्या है, आपका वहाँ पे नैरेटिव क्या मांग रहा है आपका, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। एक बहुत अजीम सिनेमेटोग्राफर हैं, रॉजर डिकिंस नाम है उनका, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवार्ड विनिंग, ऑस्कर विनिंग सिनेमेटोग्राफर इन आवर वर्ल्ड। उनका एक चीज़ है, वो कहते हैं कि अगर किसी फिल्म देखते हुए कोई इंसान अगर ये बोल दे कि व्हाट अ शॉट, तो वो कहते हैं कि मेरा फिर सब कुछ ख़त्म है, आई एम यूजलेस देन, क्योंकि सिनेमेटोग्राफर का काम है स्टोरी टेलिंग। अगर कोई फिल्म देखते हुए कहता है कि व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ सीन, व्हाट अ स्टोरी या कुछ, तो वो कहते हैं कि सिनेमेटोग्राफर की एक विन है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक चीज़ शूट करी अपने अच्छे फ्रेम्स बनाने के लिए और उसमें स्टोरी टेलिंग आप लेके साथ नहीं चल पाए, या आपने जो भी एक मैसेज देना था या चीज़ें करनी थी आप वो नहीं कर रहे, और आप सिर्फ अपने इंस्टाग्राम के लिए एक फ्रेम्स निकाल लें कि मैं फ्रेम्स लगा लूँगा, तो वो इट्स अ बैड सिनेमेटोग्राफी। कि अगर कोई पूरी फिल्म देख रहा है और वो डिस्ट्रैक्ट हो कि आपकी सिनेमेटोग्राफी से आपने इतना खूबसूरत फ्रेम बना दिया और वो उसमें इन्फॉर्मेशन समझ ही नहीं आ रही कि वो शॉट की ब्यूटी पे ही रह गया खाली और वो स्टोरी भूल गया, तो इट्स अ लॉस फॉर अ सिनेमेटोग्राफर। तो इसी तरह से आपने हमेशा समझना होता है कि आपकी स्टोरी मांग क्या रही है, तो वो ही लेंस, वो ही कैमरा, जैसा आपने पूछा था कि वो स्फेरिकल कब होंगे और एनामॉर्फिक कब होंगे, वो भी आप नैरेटिव पे डिपेंड करता है। इसी तरह लाइट पे भी डिपेंड करता है कि लाइट भी आपकी नैरेटिव को देखते हुए होगी कि आपका नैरेटिव है क्या। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। दिस इज़ माई शॉट फॉर द 7up, आई गेस, हाँ 7up। सो अभी इसमें देखते हैं तो हम एक बहुत लो कंट्रास्ट इमेज है कि जितने भी आपको अगर की लाइट उसकी दिख रही है, जो फिल लाइट है वो बहुत ज़्यादा फिल है, तो बहुत लाइक लो कंट्रास्ट इमेज है, आपको बड़ा क्लीन और वो लग रहा है। क्योंकि मैंने ये लाइट इसलिए चूज़ करी थी क्योंकि जो पूरी फिल्म है ये एक बीच पार्टी टाइप एक जगह पे डे लाइट में, एंड दे आर कंज्यूमिंग 7up न्यू फ्लेवर समथिंग। तो वो मुझे लगता था कि उसका जो भी एक लुक है वो 7up एक प्रीमियम ब्रांड है, तो वो आप उस एक कैन एक प्रीमियम ब्रांड है, एक उस तरह की पूरी आर्ट डायरेक्शन है, बीच है, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसकी जो भी लुक हो वो एक लो कंट्रास्ट हो। अगर मैं इसको हाई कंट्रास्ट करता, ग्रिंजी करता, सिल्वेट्स में करता, तो आपको वो ड्रिंक अपीलिंग नहीं लगती कभी भी। अभी इस फ्रेम में आपको शायद ड्रिंक अपीलिंग नहीं लग रही होगी, तो आपको ये तो एक पर्सपेक्टिव आ रहा होगा कि समथिंग इज़ रिफ्रेशिंग, कुछ रिफ्रेशिंग है, ये समथिंग क्लीन, समथिंग रिफ्रेशिंग। अगर मैं इसी को ग्रिंजी शूट करता तो शायद आपको रिफ्रेशिंग ही नहीं लग रहा था प्रोडक्ट। तो जिस तरह से फिल्म्स में नैरेटिव स्टोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस तरह एड्स में आपके लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिकॉज यू आर शूटिंग फॉर दैट प्रोडक्ट। तो आपको वो प्रोडक्ट को अपना नैरेटिव समझ के उसके हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं, डिज़ाइन करनी होती हैं। एंड ऑल्सो द डायरेक्टर्स प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन दिस, ऑब्वियसली। दिस इज़ डायरेक्टेड बाय आई गेस आसिम रजा, ग्रेट डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो कि दिस इज़ द हाई कॉन्ट्रास्ट। अब इमेजिन करें कि अगर इस लाइट में वो 7up पी रही होती, आपको कभी अपीलिंग नहीं लग रहा होता, आपको 7up बुरी लग रही होती, आपको रिफ्रेशिंग नहीं लग रही होती। दिस इज़ हाई कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, अब ये भी नैरेटिव्स में डिपेंड करता है। इफ़ यू सी दिस फ्रेम, आपको लगेगा कि दिस इज़ अ किलर और समथिंग, दिस इज़ अ किलर और अ मर्डरर। इफ़ यू सी दिस, यू विल आपको हमेशा लगेगा कि शायद ये कोई परेशान है, शी इज़ स्टक इन समवेयर और शी इज़ इनटू समथिंग। वो आपको हमेशा लाइट से आपके कैरेक्टर्स की जो भी अपना स्टोरी है, बैकग्राउंड है, कैरेक्टराइजेशन है जिस तरह की इंसान की, आप वो लाइट से दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ अ हाई कॉन्ट्रास्ट।
So okay, this is only backlight now. The key light and the fill light is negative here. जो 1 point और 2 point थे की लाइट और फिल लाइट, दिस इज नेगेटिव, और सिर्फ बैक लाइट है. तो बेसिकली जो बैक लाइट है उसकी, अब वो की लाइट है उसकी, और सिर्फ 1 point पे लाइट हो गई उसकी. उसकी वजह क्या है कि उसको उस फिल्म के अंदर दिखाना होगा कि भाई ये जो करेक्टर है बाद में रिवील होता है. फॉर एग्जाम्पल ये चलता हुआ आता है, आप पहले एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि पता नहीं कौन चलता हुआ आ रहा है, एंड देन ही कम्स इनटू लाइट. तो वो आप एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, आप मिस्ट्री दिखाने के लिए, आप डार्क दिखाने के लिए, आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस तरह की लाइटिंग टेक्निक्स पे जाते हैं. उसी तरह से वो फ्रेम है और ये फ्रेम है और थर्ड वन है. एनीथिंग ऑन दिस? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. शयान कहाँ गया? This is my ad for Ufone 2 or 3 years back. तो अब इसमें जो मैंने हाई कॉन्ट्रास्ट रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ये जो फ्रेम है, इफ़ यू प्ले, जब वीडियो उसकी मेरे पास नहीं है तो इट्स गोइंग शहजादे लिखा हुआ उस पर. द मेन एंथम वॉज शहजादे करके कुछ, तो उनका जो टैगलाइन था वो शहजादे था. अगर मैं इसको लो कॉन्ट्रास्ट पे करता तो मेरी ये जो वर्डिंग है ये कभी भी प्रोमिनेंट उस तरह से नहीं होती. उसी तरह से अगर मैं इस चीज़ को लो कंट्रास्ट पे करता तो मेरा एम्फेसिस करेक्टर पे नहीं जाता. इसलिए आई चोज हाई कंट्रास्ट हेयर, कि मेरा जो भी एम्फेसिस है वो उस करेक्टर पे जाए, ज़्यादा वो रजिस्टर हो. ऑल दो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, दिस इज़ अ पर्सन, दिस इज़ अ पर्सन, लोग सराउंडिंग में खड़े हुए हैं उसके, लेकिन मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं थे. मेरे लिए वो करेक्टर इंपॉर्टेंट था जो कि वो गाना गा रहा है. तो आप ऐसी जगहों पे वो चूज़ करते हैं कि आप इस तरह लाइट करें. जैसे ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है, टॉप से टॉप लाइट हुई हुई है, तो आप ऐसी जगहों पे ये चीज़ें चूज़ करते हैं कि आपने दिखाना क्या है, आपने समझाना क्या है, तो उस तरह के लाइट मूड पे जाते हैं. अगर मैं ये लो कंट्रास्ट करता, बहुत क्लीन और ब्यूटीफाई ग्लोरीफाई करता, तो शायद इस करेक्टर की जो पर्सनैलिटी जिस तरह का ये है कि माइक ड्रॉप कर रहा है, वो उस वर्ल्ड में कभी फिट ही नहीं होता. अगर ये बड़ा प्लीजेंट मूड में होता और माइक ड्रॉप करता तो माइक ड्रॉप उसमें होता ही नहीं. माइक ड्रॉप वही लोग करते हैं जो ऐसे होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ओके, सो वो था कंट्रास्ट बेसिकली लाइट से. कंट्रास्ट ज़रूरी नहीं है हमेशा लाइट से हो, कंट्रास्ट कलर से भी हो सकता है. कि आपने वार्म्स और ब्लूज़ का रेशो आपने रखा. जब भी हम कोई रात की फिल्म देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो वो उसमें कोई जो मून लाइट होती है वो वाइट या ब्लूज़ की तरफ होती है, और जो टंगस्टन लाइट्स होती हैं वो वार्मिश होती हैं. तो वो आपको एक सिनेमैटिक इमेज बना के देते हैं, जिसकी वजह होती है कि वो कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं. अगर मैं सब कुछ एक वार्म टोन पे ले जाऊँ या अगर सब कुछ कूल टोन पे ले जाऊँ, तो उसमें कंट्रास्ट कम हो जाएगा. तो कंट्रास्ट ऑफ कलर्स भी होते हैं. जिस तरह से एक लाइट पे कंट्रास्ट होता है कि हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट, उसी तरह से कंट्रास्ट ऑफ कलर्स भी होते हैं. जितना अच्छा, लाइट जो होती है वो गेज होती है केल्विन से. आपके कैमराज में भी केल्विन्स होते हैं, हर कैमरा में केल्विन होता है. जितना आप केल्विन को नीचे लेके जाते रहेंगे टू 2400, 2200, आई गेस मैक्सिमम 1800 तक जाता है मिनिमम, तो उतना वो वार्मर कूलर इमेज होती रहेगी. और जितना ऊपर ले जाते रहेंगे उतनी वो वार्मर इमेज होती रहेगी. तो वो उस तरह से आप हमेशा चेंज करते हैं कैमरा के अंदर. और जब आप लाइट पे आते हैं, लाइट पे ऑपोजिट होता है. जितना आप बिलो आते हैं उतना वो उस पर आती है, वार्म पे आती है. जितना आप ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप 10,000 पे चले गए तो वो उतना ब्लूज़ की तरफ चली जाएगी. और अगर आप बिल्कुल 2000 तक आ गए तो वो उतनी वार्म हो जाएगी. तो कैमरा में और लाइट में दोनों में ये चीज़ ऑपोजिट होती है. तो अभी हम लाइट के पढ़ रहे हैं, तो लाइट में अगर जितना आप पीछे जाएंगे उतना आप वार्मर की तरफ जाएंगे. जिस तरह से अगर आप आते तो वो बिल्कुल एक रेडिश ऑरेंज सोडियम, जैसे जो स्ट्रीट लाइट का कलर होता है सोडियम सा, उस तरफ आ जाते हैं. और जितना आप आगे जाते रहेंगे तो वो ब्लूज़ की तरफ जाता रहेगा. तो वो आप हमेशा चेंज कर सकते हैं सीन टू सीन. कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रात का सीन शूट कर रहे हैं एंड यू वांट के जो भी एम्बियंस लाइट है, वाइट्स में चीज़ें हैं, जो भी वाइट लाइट है वो टूवर्ड्स ब्लू हो जाए, और जो भी बिल्कुल येलो लाइट है वो टूवर्ड्स वाइट हो जाए, तो आप अपना केल्विन जो है वो इस किसी टोन पे ले जाते हैं. जब आप यहाँ लेकर आते हैं तो जो ब्लू लाइट होती है वो वाइट लाइट जो होती है वो यहाँ आ जाती है, और जो वार्म लाइट होती है वो यहाँ इस तरफ आ जाती है. तो वो आप उस तरह से अपनी इमेज हमेशा बैलेंस करते हैं लाइट टेम्परेचर्स से. और जब भी आप लाइट कर रहे होते हैं तो वो भी आप चेक करते हैं. तो हम अभी प्रैक्टिकल जब करेंगे तो उसमें और शायद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइट हम फिजिकली देख के उसको हम आपके सामने चेंज करके दिखा सकते हैं. लाइट्स के अंदर जो LED लाइट्स हैं उनके अंदर बिल्ट इन होता है वो फीचर जिसमें वो चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़.
So this is the example for the contrast image, contrast by tones. For example, अगर जैसे ये आग है, आग is obviously sapphire is warm. तो the cinematographer chose कि जो उसकी डे लाइट है उसको वो ब्लू से रिप्रेजेंट करे या वाइट से रिप्रेजेंट करे. उसकी वजह ये था कि इमेज में कॉन्ट्रास्ट आ जाए, वरना शायद क्योंकि इमेज में और कोई कलर नहीं है. अगर मैं पीछे खिड़की को भी वार्म कर देता तो शायद आपको ये लगता है कि ये कोई एक मोनोटोन या कोई एक सेपिया टोन की एक वार्म पूरी सी फील है. अभी आप क्योंकि फ्रेम में कोई और कलर नहीं है, इस तरह से ऊपर आप देखते तो अब इतने क्लोजअप शॉट पे भी आपको समझ आ रहा है कि शायद ये रात का मूड है, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट उसने एक ब्लू का कर लिया और एक वार्म का कर लिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. अब जैसे ये कि अगेन वहाँ कहीं डे लाइट है और इंडोर में कहीं फायर इफेक्ट है, तो वो कॉन्ट्रास्ट बाय कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट बाय लाइट बोथ. अगर मैं उसको भी वार्म करता तो शायद आपकी पहली उसमें मतलब उसको भी वार्म करता तो शायद वहाँ आपको स्टैंड आउट नहीं करती वो जगह. जैसे ये वार्म है, वो एज कॉर्नर वार्म है, लेकिन जहाँ करेक्टर है उसने उस जगह को एक डिफरेंट लाइट से करके कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर दिया, तो आपका एक स्टैंड आउट हो गया वो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. अब जैसे ये कॉन्ट्रास्ट बाय लाइट है कि जिस तरह हमारी सब कुछ एक मूड था, लेकिन हमारी एक बीम है जो कि पर्पलिश है, तो वो आपका कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रही है और आपको वो एक जगह पे एम्फेसिस कर रही है. नेक्स्ट प्लीज़. टाइप ऑफ लाइट्स या प्लीज़ ऊपर करिएगा, ऊपर करिए या. मुझे पूछना है कि जो सोफे पे लाइट आ रही है इसकी सोर्स जो है वो ऊपर विंडो है फिर दिस वन. हाँ ये वाला. अच्छा ओके, दिस इज ये एक शॉट है, वरना जो उसका वाइडर शॉट है रात का जो हम पहले चीज़ देख रहे थे वो थोड़ा सा डिफरेंट मूड था, फिल्म स्टोरी के अंदर चेंज होता है. तो ये जो राइट पे एक चीज़ है उसमें से एक सोर्स आ रही होती है, वो शॉट में दिख नहीं रही, लेकिन वो है टंगस्टन सोर्स ही. वाइट नहीं हो सकती क्योंकि वो रात है. अगर स्ट्रीट लाइट भी है या अगर वो लैम्प भी है, कोई भी चीज़ है, वो टंगस्टन सोर्स ही होगी, वार्म होगी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. Okay, so there are three types of lights: tungsten, HMIs, and the LED lights. Tungsten lights are these, जो येलो लाइट्स होती हैं हमारी, टंगस्टन लाइट्स जिसका बल्ब होता है येलो रंग का. ये आपकी बहुत सारे उसमें आती हैं वॉट्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम 150 वॉट्स, 350, 450, 1K, 2K, 5K, 10K एंड बियॉन्ड. तो ये हमारी टंगस्टन लाइट्स होती हैं. वेयर एज यू गो फॉर द HMI लाइट्स, तो वो वाइट लाइट्स होती हैं. दीज रिप्रेजेंट्स द नाइट लाइट्स, द टंगस्टन वंस. जैसे आपके लैम्प जो होता है या आपके हाउस होल्ड लैम्प्स या बल्ब जो भी होते हैं वो यही टेम्परेचर पे होते हैं. तो दीज आर मेजरली यूज्ड इन द नाइट लाइट. और जो वाइट लाइट्स होती हैं HMIs, वो वाइट लाइट्स होती हैं वो डे लाइट लाइट्स होती हैं. जो आपका सन का टेम्परेचर होता है, एक वाइटिश था, उसमें हल्का सा वार्मथ होता है, वो टेम्परेचर होता है वो. दिस इज दैट इज़ 5600 केल्विन एंड दिस इज़ 3600 केल्विन. तो हम जितना जो टेम्परेचर पढ़ रहे थे कि हम नीचे जाएंगे नंबर तो उतना वो वार्म होती है, और जितना ऊपर जाते हैं तो ब्लू होती है. तो डैट्स 5600 केल्विन. HMIs हम यूज़ करते हैं जब भी हमको डे लाइट में सन का रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सन को अगेंस्ट वो कर रहे होते हैं कि आप जब भी शूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सन बैकग्राउंड पे था या कहीं बैकग्राउंड पे जा रहा था, अब करेक्टर की फेस लाइट करनी है आपने, तो यू विल गो फॉर द HMIs आप करेंगे तो वो जो सेम टेम्परेचर मैच हो जाता है. अगर आप गोल्डन लाइट लगाएंगे उसमें तो वो एक आर्टिफिशियल लगेगा, ब्लेंड नहीं होगा, कलर ब्लेंड नहीं होगा सन का और उसका. यू ऑल्सो यूज़ टंगस्टन लाइट्स इन डे लाइट ऑल्सो, पर जब आप दिखाते हैं गोल्डन आवर्स, बिल्कुल सुबह डॉन का टाइम या सनसेट का टाइम, जब आपके गोल्डन आवर चल रहा होता है, आप यू सी ए गोल्डन लाइट कमिंग इन, तब आप टंगस्टन लाइट यूज़ कर सकते हैं डे लाइट में भी. बट आज के ज़माने में ये जो टंगस्टन और HMIs हैं, दीज आर मतलब मुझसे बहुत, मेरे शायद पैदा होने से भी बहुत पुरानी लाइट्स हैं. तो जब से सिनेमेटोग्राफी स्टार्ट हुई है, फिल्म मेकिंग स्टार्ट हुई है, तब से यही लाइट्स इस्तेमाल होती आ रही हैं. उसमें लाइट्स अपग्रेड होती जा रही हैं, चीज़ होती जा रही हैं, लेकिन यही होती जा रही है. दीज आर रियली हाई वोल्टेज लाइट्स कि अगर HMI है 6000 वॉट्स, तो 6000 वॉट्स आप नॉर्मली कहीं प्लग नहीं कर सकते. यू नीड अ गुड जनरेटर फॉर दैट. उसके एम्पेयर्स बहुत हैवी होते हैं, यू हैव अ ब्लास्टर उसके साथ, तो वो आप नॉर्मली फ्रेंडली टू यूज़ नहीं है, ईजी टू यूज़ नहीं है. वो प्रॉपर आपको एक जनरेटर चाहिए, उस पर कनेक्शन होगा, प्रॉपर सारी चीज़ें होंगी तो वो होगा. तो जब अब नया एज की सिनेमेटोग्राफी आ रही है, चीज़ें हो रही हैं फिल्म मेकिंग में, सो नाउ पीपल हैव कम अक्रॉस विद द LED लाइट्स. LED लाइट्स क्या करती हैं
कि वही वाइट लाइट भी हो सकती है, उसी में चेंजेबल होता है, वो वार्म भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल हाउस होल्ड के प्लग पे भी चल सकती हैं। और उनकी जो सोर्स होती है वो एक HMI और टंगस्टन के मुकाबले में उसकी जितनी होती है, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज करी है। उनमें बल्ब्स होते थे, इसमें मल्टीपल LEDs होती हैं, तो वो सोर्स मैच कर लेते हैं। बट फॉर मी आई ऑलवेज सजेस्ट कि HMI और टंगस्टन शुड बी अ गो टू ऑप्शन। LEDs तब यूज़ होनी चाहिए जब आप किसी ऐसी कन्फाइंड स्पेस में जहाँ पे आप HMIs यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इट्स हैवी, इट्स बिग, तो वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कहूँ कि यार एक छोटे से घर का सीक्वेंस है एंड आई जस्ट नीड वन लाइट जो कि फेस लाइट हो रही है उसकी, तो HMI या टंगस्टन यूज़ करता हूँ अगर उस वक्त में, तो इट्स अ बिगर इन साइज़, उसको संभालना, उसको चलाना, उसको प्लग करना, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। मैं वो लाइट लगाता हूँ एंड दे आर नॉट कंट्रोलेबल बाय डिमर्स, द HMI एंड द टंगस्टन वंस। तो आपको फिर उसको डिफ्यूज़ करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड यू डोंट हैव एनी स्पेस ओवर देयर। आप अगर LED लाइट तब यूज़ करते हैं तो LED लाइट्स आर कंट्रोलेबल ऑन डिमर्स एंड कंट्रोलेबल ऑन कलर्स ऑल्सो। तो यू जस्ट पुट अ लाइट ऑन द फेस, वो होती भी कॉम्पैक्ट सी है, आपने प्लेस कर लिया, आपने वहीं बराबर में सॉकेट में लगा ली एंड यू कैन कंट्रोल डाउन ऑन द डिमर, तो वो आपके लिए ईजी रहता है फॉर शूटिंग। तो LED आर द शूटिंग फ्रेंडली लाइट्स। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट लाइट। हाँ, हमने ऊपर भी ऐसे देख लिया था कि हार्ड लाइट जो होती है वो लाइट होती है जिसमें आप जब की लाइट आपकी हार्ड होगी फॉर एग्जांपल, तो आपके यहाँ शेडोज़ बनेंगे, फिल कम होती है, शेडोज़ बनते हैं। और जब आप सॉफ्ट लाइट पे जाते हैं तो वो सॉफ्ट लाइट होती है तो आपके शेडोज़ कम बनते हैं। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट कैसे होती है वो और हार्ड कैसे होती है, मुझे लगता है प्रैक्टिकल में ज़्यादा समझ आएगा। फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि वी हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ डिफ्यूज़र्स लाइट के। वी हैव प्लास्टिक टाइप ऑफ शीट, हम देख भी लेंगे। आप जब वो प्लेस करते हैं किसी भी लाइट के आगे, दैट डिफ्यूजेस द लाइट, जैसे बटर पेपर होता है, इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ बटर पेपर्स, तो वो आप सॉफ्ट कर सकते हो उससे लाइट। आप वो हटा देंगे डायरेक्ट, जैसे ये लाइट है अभी डायरेक्ट मेरे फेस पे, इट्स एन हार्ड, आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे कोई शेडो बन रहा होगा, यहाँ कोई शेडो बन रहा होगा, पर इसी पे अगर हम डिफ्यूज़र प्लेस कर लें, सॉफ्ट कर लें इसको, तो ये ब्लेंड हो जाएगी और यहाँ शेडो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी, वो एक्सपेंड हो जाएगी। तो वो हार्ड और सॉफ्ट का एक फ़र्क होता है। अगेन आप हार्ड लाइट और सॉफ्ट लाइट आपने कब रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू आर शूटिंग ए रोमांटिक सीन, एक लड़का और एक लड़की है, यू विल गो फॉर द सॉफ्ट लाइट, कि दोनों बहुत खूबसूरत लगें, दोनों बहुत रोमांटिक सा सीन शूट कर रहे हैं। अगर आप यही सीन शूट कर रहे हैं कि एक ऑर्फनेज है और एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा जुल्म करता है अपने सारे जो बच्चे वहाँ रहते हैं ऑर्फनेज में, तो यू गो फॉर द हार्ड लाइट, कि उसका करेक्टर आपको और डार्क लगे, शेडोज़ आए हैं, उसका करेक्टर आपको और क्रूल लगे, तो यू गो फॉर द हार्ड लाइट। और सॉफ्ट लाइट आप तब जाएंगे जब आप ऐसी कोई चीज़ शूट करें जब आपको बहुत ईजी मेलो सा सीन दिखाना है। नेक्स्ट लाइट प्लीज़। So this is the hard light, this is the hard light. You see hard light creating shadows, creating a hard beams, lights, shadow of a lamp over here, the shadows of the table. क्योंकि अभी ये जो करेक्टर है, I guess this is from the film Hangover, I guess, I don't remember actually. तो अभी जो भी करेक्टर है ये आपको ये देख के लग रहा है कि शायद ये परेशान है या किसी चीज़ में इन्वॉल्व है या कोई चीज़ चल रही है इसकी लाइफ में, समथिंग इज़ हैपनिंग, तो वो हार्ड लाइट सोर्स पे है। फॉर दिस गाय आपको इसको हार्ड लाइट से ये इफेक्ट आ रहा है कि this is something wrong happening with him or something, he is in the between something. Next slide. This is my shot from the U-phone. So I chose hard light over here. अब मुझे इस वक्त ये मैंने रेफरेंसली यूज़ किया था यहाँ पे ताकि मैं ये समझा पाऊँ कि हार्ड लाइट सिर्फ ज़रूरी नहीं है इसलिए हो कि करेक्टर पे हम जा रहे हैं, करेक्टर की वो क्रूलिटी या कोई मेलोनेस दिखा रहे, हमारा एरिया बहुत डिपेंड करता है। जिस तरह से मैंने ये शूट किया था, हमने ये डिपिक्ट किया था कि ये कोई नॉर्थन एरियाज़ हैं, सही है, क्योंकि विंडो के बाद नॉर्थन एरियाज़ है। व्हेनेवर यू गो ऑन द नॉर्थन एरियाज़ इज ऑन द हाइट, तो यू ऑलवेज गेट द सन, हार्ड सन कमिंग इन टू द विंडोज़, क्योंकि बहुत ओपन एरियाज़ होते हैं, कोई बिल्डिंग्स नहीं होती, चीज़ें नहीं होती, तो हर घर में ही सन आ रहा होता है, हर जगह ही सन आ रहा होता है। तो इसलिए मैंने हार्ड लाइट चूज़ की थी यहाँ पे कि अगर हम पीछे नॉर्थन एरियाज़ दिखा रहे हैं तो उस तरह की एक लाइट होनी चाहिए। बट स्टिल आई चोज़ कि जब फेस पे आए हम उसके क्लोजअप पे आए तो इतना नेगेटिव फिल ना हो, फिल लाइट भी जो है वो हो उसकी, ताकि वो कैरेक्टर जो भी हमारा वो नेगेटिव की तरफ ना जा रहा हो, कि उसकी एक तरफ बिल्कुल शेडोज़ हैं तो वो उतना मेलो नहीं लग रहा। तो इसलिए मैंने हार्ड लाइट चूज़ करी साथ में, लेकिन मैंने अपनी फिल लाइट की जो पावर है वो इन्हेंस कर ली ताकि शेडोज़ बहुत ज़्यादा ना आए।
No, this is on chroma. This is a set, like जैसे ये set लगा हुआ है, इस तरह का set लगा हुआ है स्टूडियो में, and the outside of the windows is a chroma, and on the post production हमने ये किया हुआ है. So, what do you mean by chroma? Okay, you see the green wall at the back? Yeah. That's chroma. Chroma is कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ शूट कर रहे होते हैं, जब आपको पता है कि आपके पास बैकग्राउंड नहीं है, आप नॉर्थन एरियाज नहीं जा सकते, तो यू प्लेस अ ग्रीन स्क्रीन एट द बैकग्राउंड, और इन द पोस्ट प्रोडक्शन द गाय कट्स द ग्रीन स्क्रीन एंड प्लेस अ माउंटेन्स ओवर देयर. इट्स नॉट एन ईजी थिंग. सुनने में बहुत ईजी लग रहा है कि बस वो क्लिक किया और वो हो जाएगा. इट्स अ वन क्लिक थिंग, पर थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि आपने लाइट मैच करनी होती है. अब जैसे अगर हम बाहर देखते हैं ना, तो अगर आप ये देखते हैं तो ये जो साइड है ये डार्क है, लेकिन ये साइड जो साइड लाइट पे ही है. तो आपने वो पहले इमेज निकालनी होती है कि आप उसकी बैकग्राउंड की इमेज में सन कहाँ पर है. अगर मैं इसमें सन यूँ था तो इसीलिए मैंने सन इसी को फॉलो किया है. अगर इसमें सन फ्रंटल होता और मैं इसमें बैकलाइट का बनाता, सन इंडोर बैकलाइट कर देता और इमेज पे फ्रंटल लाइट होता, तो वो कभी भी मर्ज नहीं होती. वो आपको लगता कि नहीं ये कुछ हुआ हुआ है पोस्ट प्रोडक्शन पे या कुछ है, तो वो डिफरेंट आता है. ये जो फ्रेम है इसमें जो बैकग्राउंड है, जो आउटसाइड वाली जो जगह है वो भी एक्सपोज हुई हुई है, और जो इंडोर्स हैं वो भी एक्सपोज हुआ हुआ है. इतना लाइक वो नहीं हो रहा. तो इफ़ यू वर टू एक्चुअली शूट दिस आउटडोर्स, तो उसमें जो आउटसाइड है वो बहुत ओवर एक्सपोज हो जाएगा, या फिर दोनों को कैसे एक्सपोज करेंगे? दिस इज सिनेमैटोग्राफी कि आपने जब इंफॉर्मेशन देनी है बाहर कि बाहर माउंटेन्स हैं, देन यू हैव टू डू एक्सपोज. पहले आपने बाहर एक्सपोज कर लिया अपने कैमरा से, तो जितना भी एक्सपोज हो गया. फॉर एग्जांपल मैंने बाहर एक्सपोज पहले मैंने बाहर एक्सपोज नहीं किया और मैं इंडोर लाइट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए 2000 वॉट की एक लाइट फेस लाइट कर रही है, काफ़ी है, सही है. पर अगर मैंने बाहर एक्सपोज कर लिया एक बार और मेरा सारा अंदर का इन्वायरमेंट पूरा डार्क हो जाएगा, देन आई हैव टू गो फॉर द 10,000 वॉट. ये जो फेस लाइट इसके ऊपर आ रही लड़की के ऊपर, दस 10,000 वॉट की लाइट है वो. इतनी बड़ी वो लाइट है, दैट्स द बिगेस्ट लाइट इन पाकिस्तान, 10,000 वॉट्स. तो आप फिर उस लाइट पे आ जाते हैं. मतलब हमारे नॉर्मल जो बल्ब्स होते हैं घर के वो 60 वॉट्स 20 वॉट्स के होते हैं, और वो कितनी लाइट दे रहे होते हैं आपने देखा है. तो ये 10,000 वॉट्स हैं. तो आपने पहले बाहर एक्सपोज करना होता है, देन उसके हिसाब से आपने अंदर उतनी पावरफुल लाइट्स लगा के उसको एक्सपोज करना होता है जब भी आप शूट कर रहे होते हैं. हम जैसे आउटडोर शॉट भी शूट करते हैं तो हम इसी तरह करते हैं कि हम कंपैरेटिवली सन को देखते हुए अपनी फेस लाइट करते हैं या कोर लाइट्स करते हैं. हम छोटी लाइट्स पे नहीं कर सकते. यू हैव समथिंग फ्रॉम द साइड. Hello. Okay. So you said that the sun is generally coming from the right and falling towards like the mountain over there, ठीक है? So, but if you look at that image, उसके अंदर, I mean, it's like warmish. I mean, there's no contrast in it. कि इधर dark है, उधर, I mean, as such. So is that like intentional? How did you decide कि वो ऐसा अगर आप सही से गौर से देखते हैं उसको, तो ये जो पहाड़ है, this one only, not this one, this one. This is this. And this one is this, and that one is this. उसका जो शेप है वो यूं है, इसीलिए वो लाइट फॉल उस पर हो रही है, क्योंकि जो बैकग्राउंड वाली इमेज है वो एक ही इमेज है, वो एक्चुअल इमेज है और एक ही इमेज है. वो मैंने लाइट नहीं करी. दैट्स अ रियल इमेज, द रियल सन एंड रियल इमेज बैकग्राउंड में जो लगी हुई है. तो वो पहाड़ कर्व में, दैट्स वाई यू सी द लाइट ओवर हेयर. अगर वो फ्रंटल होती तो ये जगह लेट होती, ये भी जगह लेट होती, बट यू सी कॉन्ट्रास्ट ओवर हेयर और यहाँ पे वो लेट है. इट्स अ साइड लाइट, इट्स नॉट फ्रंटल. ओके, सो दिस इज हाँ. तो ये बात थी कि हार्ड लाइट में ज़रूरी नहीं कि हार्ड लाइट के साथ आप सिर्फ नेगेटिव ही बना सकते हैं. आप हार्ड लाइट में भी अपना फेस सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हार्ड लाइट की है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ओके, दिस इज़ हार्ड लाइट. अगेन दिस इज़ हार्ड लाइट बट लेस शेडोज़. फेस उसका उस तरह से डार्क नहीं हो रहा जिस तरह से हम वो अंकल की फ़ोटो देख रहे थे उसमें बहुत डार्क था. दिस इज़ सॉफ्ट लाइट बट मोर शेडोज़. तो आप सॉफ्ट लाइट तो कर रहे हैं लेकिन आपने नेगेटिव फिल बना ली, तो वो मोर शेडोज़ हो गए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो आप डिपिक्ट क्या कर रहे हैं उस सीन को. आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एक ओवरकास्ट डे है, मॉर्निंग है, ओवरकास्ट डे है, देयर इज़ नो सन, तो वो इस तरह की लाइट होगी. क्योंकि जब ओवरकास्ट होता है तो वो आपके बाउंस लाइट आ रही होती है घर के अंदर, तो वो एक तरफ से लाइट आ रही है बट इट्स सॉफ्ट, पर उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि वो फिल लाइट बना सके. तो फिल इज़ द डार्क साइड. तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, दिस इज
another example for the soft diffuse light, कि this is not my shot, soft diffuse light के soft भी light, diffuse भी है, shadows हैं भी लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो जो लड़की है वो आपको अच्छी ना लग रही हो या आपको करेक्टर उसका नेगेटिव लग रहा हो. तो कॉन्ट्रास्ट है भी लेकिन शेडोज़ नहीं है. तो इट्स अ वेरी थिन लाइन जब आपने चूज़ करना होता है कि मुझे कितना कॉन्ट्रास्ट रखना है, कितना शेडोज़ रखने हैं, क्या रेशो रखना है. यूजुअली वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ रेशो कि अगर दिस इज़ द की लाइट एंड दिस इज़ 3, सो आई विल गो फॉर दिस 2. अगर मुझे और इसको कम करना है तो 3, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 0. तो वो आप इस तरह से हम लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं. तो वो आपने खुद अपनी स्टोरी, अपने सीन, अपनी चीज़ों को देख के एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है कि वो किस तरह रख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ये फिर आ गए. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट. किसी भी जगह पर जाते हैं शूट करने के लिए, कोई भी हमारा बोर्ड आता है, कोई भी एक चीज़ आती है शूट करने के लिए, तो वो हम किस तरह से उसको रख रहे होते हैं कि हम पहले बेसिकली हम एक पूरे जो भी कॉन्सेप्ट होता है, चीज़ें होती हैं, जो भी डायरेक्टर से एक ब्रीफ आती है कि हमें ये सीक्वेंसेस शूट करने हैं, तो हम उसका एक लुक बुक बनाते हैं. हम उसके रेफरेंसेस ढूंढते हैं कि ओके यू वांट टू शूट दिस सीक्वेंस, तो हम एक रेफरेंस ढूंढते हैं कि हम उसकी कैसी लाइट, उसका कैसी फ्रेमिंग, कैसी चीज़ें करेंगे. तो उसका एक लुक डिसाइड करते हैं. दिस इज़ माई रेफरेंस इमेज, दिस इज़ द लुक वी वांटेड टू अचीव, कि वो इस तरह की एक लुक बने. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. दिस इज़ वॉट वी केम अप टू. जब मैं ग्रेड पे था तो मुझे लगा कि हमें शायद और वार्म कर देनी चाहिए, क्योंकि समर्स की फिल्म में चीज़ें हैं, तो हमने और वार्म कर ली. बट दिस इज़ आई थिंक कि आप जब भी शूट करें तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, तो आपके लिए वो चीज़ तक अचीव करना आसान होता है. क्योंकि अगर आप एक बिल्कुल ब्लैंक खड़े होंगे बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी रेफरेंस पॉइंट के, तो आप एक्सपेरिमेंट करते रह जाएंगे. क्योंकि कोई भी एक सीन मल्टीपल तरीक़ों से लेट हो सकता है. वो हार्ड लाइट पे, सॉफ्ट लाइट पे, वार्म में, कूल में, हज़ार तरह से शूट हो सकता है वो. तो आप पहले एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा होना चाहिए आपके पास जब भी आप किसी शूट पे जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, ताकि आपको पता हो कि व्हाट यू वांट टू अचीव. दिस इज़ द होमवर्क बेसिकली ऑफ सिनेमेटोग्राफर, कि वो रात में ही या एक दिन पहले, 2 दिन पहले सोच लेता है कि ओके आई विल शूट दिस ऑन द सॉफ्ट लाइट, आई विल शूट ऑन द वार्म लाइट्स, आई विल शूट इन लेस कॉन्ट्रास्टी, वट एवर द प्लान इज़. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सो दिस इज़ द रेफरेंस आई हैड कि कुछ इस तरह का आखिर में इमेज होना चाहिए, एंड दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट. दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट. सो बेसिकली आप ये नहीं करते कि अपना रेफरेंस में, मतलब ऐसा नहीं करना होता कि रेफरेंस में उसी तरह 2 गाड़ियाँ वहाँ प्लेस करूँ और वो करूँ, लेकिन जब वो 2 इमेज बराबर में हो तो दोनों की फील जो है ना वो आपको सेम फील हो. कि मतलब अगर आप दोनों इमेज देखते हैं तो वो आपको वर्ल्ड सेम लग रहा है अब, कि हाँ दिस इज़ द सेम सिमिलर वर्ल्ड. तो आपने वो अचीव करना होता है, आपने बिल्कुल कॉपी नहीं करना है. रेफरेंस हमेशा लोग इसको गलत समझते हैं. लोग कहते हैं कि ऐड इस तरह बनते हैं कि आपने कोई 2-4 ऐड देखे और उन ऐड को उठा के आपने अपना ऐड बना लिया. दिस इज़ नाउ हाउ द रेफरेंस वर्क्स. रेफरेंस वर्क इस तरह करता है कि आपने कोई भी चीज़ देखी, उसमें से आपने क्या चीज़ पिक करनी है और अपनी वर्ल्ड में सेटल डाउन करना उस चीज़ को, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने करेक्टर को ये कैप पहना देता तो मेरा करेक्टर तो दिखता ही नहीं. अब उसके वर्ल्ड में ये हो सकता होगा, मेरे वर्ल्ड में नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उसका एक पूरा ओवरऑल जो एक फील है ना, सिर्फ वो पिक करी और मैंने वो इम्प्लीमेंट करी अपने 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 फ्रेम पे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. अब जैसे दिस इज़ द लुक आई वांटेड टू अचीव, दिस वाज द लोकेशन वी हैड. नेक्स्ट स्लाइड. एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड. तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट था कि ओके सो ये हम इस तरह के थोड़ा आर्टिशन कर सकते हैं, हम इस तरह की लाइट कर सकते हैं, हम इस तरह के शॉट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. इस तरह से ये. नेक्स्ट स्लाइड. ओके दिस इज़ द लुक आई वांटेड टू अचीव. अगेन जैसे पहले वाला जो था वो एक आर्ट रेफरेंस भी था, ये वाला जो है ये वाला एक फील, ये एक तरह की फील है जो हमें अचीव करनी थी. नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज़ व्हाट वी डिड. कि पर्पल लाइट्स हैं, उसमें पर्पल लाइट्स थी, तो आई गेस कि वो फील जो थी ना, पर्पल लाइट्स, ब्लूज, वो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी. चीज़ें उसमें मुझे समझ आ रही थी. पर उसमें फेस लाइट्स जो थी ना वो बहुत ज़्यादा डार्क थी, बहुत नेगेटिव थी. एक साइड ऊपर करिएगा. जैसे इसमें फेस लाइट जो है बहुत डार्क है, बहुत नेगेटिव है, क्योंकि ये किसी फिल्म का शॉट था, तो वो नैरेटिव था. व्हेनेवर यू आर शूटिंग कमर्शियल्स तो इट्स हैज़ टू बी कमर्शियल अ लिटिल. आप बहुत उसको ग्रंजी और डार्क की तरफ नहीं जाते, क्योंकि बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट एनी हाउ, अनलेस एंड अनटिल आपका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का हो. नेक्स्ट स्लाइड. तो हम जब यहाँ पर आए तो ही इज़ अ सेलिब्रिटी, तो
यू हैव टू, ये मेरा अपना मानना है, लोग इस तरह नहीं करते, बहुत सारे लोग उसको डार्क भी शूट करते चीज़ें करते हैं, बट मेरा मानना ये, इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू अ कमर्शियल TVC वर्ल्ड्स, तो द सेलिब्रिटी इज़ द फेस ऑफ अ ब्रांड. यू शुड शूट योर सेलिब्रिटी लाइक ही इज़ द सेलिब्रिटी. वो उतना अच्छा शूट होना चाहिए, उसका फेस इतना अच्छा होना चाहिए, उसने करोड़ रुपए लिए शक्ल दिखाने के अपने, तो आपने उसको अच्छा शूट करना चाहिए. एंड दैट्स अचीवमेंट ऑफ अ सिनेमेटोग्राफर कि आप अगर TVC कर रहे हैं, नैरेटिव कर रहे हैं, कुछ भी करें, तो आप उस वर्ल्ड में चले जाएं. TVC कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यू आर शूटिंग फॉर अ ब्रांड. अगर आप नैरेटिव कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यू आर शूटिंग फॉर द वर्ल्ड. तो आपको वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से चेंज करनी होती हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. This is the look we wanted to achieve. This is the place we decided to shoot this. Next slide. And this is what we shot. Okay, next slide. This is also next. Okay. In the new age cinematography, पहले shoots जब भी होती थी back 10 years or 12 years back, तब कोई इतनी movement की हमारे पास resources नहीं थी. पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम है, लेकिन पहले दुनिया में तो थी. अब दुनिया में तो हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम है, लेकिन पहले दुनिया में भी बहुत कम थी. कि रिसोर्सेज किस तरह से, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आप सीन्स देखते होंगे कि कैमरा स्टार्ट होता है, वो वॉक चलता रहता है, कैमरा जाता रहता है, वो एक विंडो से भी एंटर होता है, चीज़ें होती हैं. तो वो बहुत सारी रिसोर्सेज होती है जो पाकिस्तान में नहीं है. इसलिए हम, और पहले होती भी नहीं थी, पहले बहुत सारी फिल्म स्टैटिक शूट होती थी कि बस कैमरा रखा हुआ है ट्राइपॉड पे और जो भी सीन है उसके अंदर सीन हो रहा है. अब आप फिल्म देखते हैं तो अब कैरेक्टर फॉलो भी हो रहा होता है, चीज़ें हो रही होती हैं, टॉप शॉट्स भी आ रहे होते हैं, मूवमेंट्स हो रही होती हैं, चीज़ें हो रही होती हैं. तो वो सब ना रिगिंग होती है बेसिकली. स्टेडी कैम्स, रॉन इन, रिग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं कि आपने कोई शॉट लेना है, कोई चीज़ बनानी है, तो वो उसकी एक स्पेसिफिक रिग्स बनती हैं. तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था. आई वाज शूटिंग इन थाईलैंड, आई गेस. नीचे करिएगा, नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, आई वाज शूटिंग इन थाईलैंड. तो मेरे रेफरेंस, हम रेकी पे गए, मेरे पास एक रेफरेंस शॉट था अपने दिमाग में कि हम ये शॉट बनाएंगे. प्ले करिएगा वीडियो होगी. अब मेरे पास एक रेफरेंस शॉट था कि मुझे ये शॉट चाहिए, पर जब मैंने ये शॉट पहले मैंने खुद बनाया ये शॉट, तो मुझे अंडरस्टैंड आया कि मैंने बोला करेक्टर से, मैंने बोला मैं भागता हूँ, आप बनाएं. तो ये शॉट में प्रॉब्लम ये है कि कैमरा अभी भी ऊपर तक नहीं आ पा रहा, और जिसने उस भाई की हाइट की, हाथ की लेंथ थी, ये उतना आ पा रहा है. जब मैंने भी किया, वो मुझसे टॉलर था, इसलिए मैंने उसको बोला कर लो. जब मैंने भी किया तब मैं भी इतना पहुंच पा रहा था. अगर नॉर्मल कैमरा भी हमारे पास स्टेडी कैम की चीज़ पे होता है तो वो भी इसी हाइट पे आ पाता, और बहुत तेज़ जाना था हमें. सो व्हाट आई टोल्ड माई बैंकॉक टीम कि मुझे इस तरह का शॉट चाहिए, बट बहुत स्मूथ भी चाहिए, और मुझे ऊपर भी आना है. तो आई गेव देम द रिक्वायरमेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड प्ले. तो उन्होंने मुझे एक रिग बना के दी, बेसिकली उन्होंने एक मुझे पूरी रिग बना के दी. दिस इज रिगिंग. यू प्लेस द कैमरा ओवर देयर और आप उसको पुश करें और वो चला जाएगा. हमने यूजुअली ट्रैक्स देखे होंगे, तो वो ट्रैक ज़मीन पे होते हैं स्लाइड करने के लिए. तो उन्होंने ये पूरा एक सेटअप बना के मुझे दिया, जो कि अभी इट्स हाफ डन. ये पुलिस सिस्टम पे था और ये बहुत तेज़ था. तो आपकी रिगिंग इस तरह होती है. रिगिंग इज़ अ डिपार्टमेंट इन फिल्म मेकिंग जो करता ही यही काम है. लाइट्स कंपनीज होती हैं, उनमें रिगिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो करते ही यही काम है कि सिनेमेटोग्राफर को जो चीज़ अचीव करनी है उसको हाउ टू मेक दैट शॉट ईजी एंड अचीवेबल. तो उन्होंने मुझे ये करके दिया. नेक्स्ट शॉट. ओके, दिस इज अनदर रिगिंग शॉट. ये प्ले करिएगा. सो ऑन द रेकी वी डिसाइडेड कि हमें शॉट लेना है. ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म. हमें ये शॉट लेना था कि कैमरा बंदे की 360 बैक से शुरू होता, फ्रंट से शुरू होता है, पूरा बैक पे आता है, बंदा वॉक करता है तो वो कैमरा टिल डाउन होता है एंड ही फॉल शोज हिम कि वो वॉक करता हुआ जा रहा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अस्सलाम प्ले. सो दिस इज व्हाट दे मेड. सो मेड दिस. अब हम इसके बाद वो ऐड देखेंगे जिसमें ये दोनों शॉर्ट्स हैं, तो आई होप आपको वो शॉर्ट्स बीच में नज़र आएंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ओके, सो दिस इज़ द बेसिकली द रेफरेंस शॉट. ये वीडियो है आई गेस, प्ले करिएगा. वो अच्छा ये वाली कर दे, वो वाली कर दें पहले. हाँ, सो बेसिकली ये इस तरह का एक मैकेनिज्म उन्होंने मुझे ड्रॉ करके दिया जिस पर ये चीज़ हो रही थी. अब ये प्ले करें. दिस इज़ द बीटस ऑफ द शूट डे. दिस इज़ मी स्टैंडिंग ओवर हियर. दिस इज़ एक्टर. दिस इज़ माई ग्रिप गाय. They were just some basic rules of filmmaking. They can be adjusted and broken as needed to achieve the desired effect.
तो जितनी भी मैंने बातें करी वो आप अपनी समझें, सारी चीज़ें सुनें, लेकिन उसको बुक ना समझें और सिर्फ उसी को अप्लाई ना करें। उन चीज़ों को पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए आपको जो भी एक लोग अचीव करना है, अगर आपको वो तोड़ना पड़ता है वो रूल, या आपको वो चीज़ नहीं करनी पड़ती है, कुछ और करना पड़ता है, तो यू शुड डू इट, बट ऑलवेज अचीव व्हाट यू हैव डिज़ायर्ड। तो वो जिस तरह भी होता है। सो लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल थिंग नाउ। कैमरा वो करते हैं, सेमिनार टाइप करते हैं। सरफराज विल लीड द कि क्या होना है आगे। या श्योर। Yeah. So what's the purpose of using like wide lenses for clothes? Like what do you want to particularly achieve with that? बाय द टाइम हर कुछ टाइम पे सिनेमेटोग्राफी इवॉल्व होती है, फिल्म मेकिंग इवॉल्व होती है, चीज़ें इवॉल्व होती हैं। जो पहले जब सिनेमेटोग्राफी थी तो वो मेजरली 50 mm और 35 mm पे शॉट्स हो रहे होते थे। अब जो न्यू एज है, जो जेनजी वर्ल्ड है, जो एक, क्योंकि एडवर्टाइजिंग ना हर वक्त एक एरा को टारगेट करती है। पहले अब जो जिस वर्ल्ड को टारगेट करती है मोस्टली ब्रांड्स, वो जेनजी वर्ल्ड को टारगेट करते हैं। एंड जेनजी इज़ मोर लाइक movement, funky, more like energetic and everything. तो वो जो चीज़ें हैं वो वाइडर लेंस पे उनकी चीज़ें आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होती हैं, क्योंकि जितना लेंस वाइड होगा उतनी चीज़ें नज़र आती हैं, उतनी मूवमेंट आपको फील होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑन 50 mm आई ट्रैक माई कैमरा फ्रॉम हेयर टू हेयर यू, उतना फील आपको नहीं होगा क्योंकि कैमरा यहाँ से यहाँ आएगा खाली। ऑन अ वाइडर लेंस अगर मैं यहाँ से आता हूँ तो पहले मेरे फ्रेम में सरफराज भी होंगे एंड देन आई गो कम टू योर क्लोजअप, तो वो आपकी जो अब वो फील जो है ना, जेनजी और चीज़ें एडवर्टाइजिंग उसको टारगेट करती है, तो सिनेमेटोग्राफर्स और डायरेक्टर्स उसके हिसाब से भी चीज़ें चेंज करते हैं। बट ऑन द सेम साइड अगर आप वॉल एड्स देखेंगे जो कि एक मेच्योर ऑडियंस के लिए अभी भी एड्स हैं, जैसे अगर आप किसी हेयर प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं या आप किसी बच्चे का ऐड देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो वो आज भी बड़े मेच्योरली शॉर्ट होते हैं कि वो 50 mm 35 mm उस वाली फील पे ही होते हैं। पर कुछ चीज़ें जो कि टारगेटेड ऑडियंस इज ऑल अबाउट एन एडवर्टाइजमेंट फील्ड, तो ये है। एनीथिंग एल्स और शुड वी मूव ऑन? क्वेश्चंस हैं किसी के? क्वेश्चंस गाइस, एनीथिंग? यस, नो क्वेश्चंस? होगा सबके। नो, ओके। So yeah, we can do the announcement. Yeah, everybody, we are going to take a break of 15 minutes. Come back when we'll do the practical part of the workshop. पानी नहीं पी ले, कुछ खा पी ले, वॉशरूम हो ले, come be back here.